Achha, now you can see? Yeah, we can see it now. Yeah, we can see it now. Okay. Yeah. So launch of Algo Trader for Zerodha and target-based portfolio trading. So today my major focus is on target-based portfolio trading, which I have experimented for last 15 to 20 days. And I'll be sharing my experience how to trade on the basis of target. For each script, how we can take the target and how we can do the portfolio trading. That is the major focus of today's presentation. It is an actual system to make money every day with high probability. It is not a tool, it is not a strategy, but it is a tool, not a strategy, and there is no SEBI violation, as I explained earlier. A free innovative algo strategy in webinars, and then various these risk control measures what we have. No need to pay money for learning any strategy or attending any webinar as per our tradition. So this is just this is our disclaimer. Particularly read the last 4 lines. That is, Algo Trader is just a tool to place orders through API server provided by the broker, exactly similar to desktop terminal or web mobile based application. So that means we are not violating any SEBI guideline. Algo Trader is neither using any of its platform, nor it is a strategy. No return is guaranteed in Algo Trader. Any ROI shown in the presentation or webinar is based on certain assumptions, which may or may not be correct. Be careful from the imitators who are trying to copy or steal Algo Trader concepts, logic, setups without any risk control measures. Okay. So first, although I discussed this particular slide last time, but this I made some minor changes, and I'm again discussing target-based trading or target-based portfolio trading. So our portfolio is generating either the dividend or the capital appreciation. That may be once or twice or thrice in a year, or normally we are happy with the whatever the dividend we are getting. Now, what I am proposing is our portfolio should generate revenue every day like any other businessman. It should not be that I will get a dividend once in a year, maybe some capital appreciation may or may not come, but ideally that we are getting only the dividend. So we don't want that one. We want our portfolio should generate revenue every day. So a businessman always think about the current valuation of his assets, irrespective of original buyer and the sale price. Now, this is the major issue with all the retail investors. Now, retail investors, they have a mind set up. If they have bought a stock at 500 rupees and if it is trading today as 400 rupees, they say, no, I will wait only till my price come to 500. But a businessman always think in the other way. He always take the valuation of his assets as on today. He will not think about what price he bought earlier. Say, for example, say potato. Now, if a vendor has bought a potato at the rate of 20 rupees and today it is trading at 10 rupees, he will not say that I will sell only at 21 rupees, 22 rupees. He will sell at the 10 and then he will carry on his business. Similarly, for all other businesses, any businessman, they always take the valuation of the assets as on today. How this is valuing, whether it's going to generate a profit for me or whether it's going to generate a loss for me, should I exit or should I book a profit? But we as a retail investor, this is kept in our mind, or this was it was basically everybody has minded like that we always value our valuation at what rate we bought. Actually, the historical buy and sale prices no relevance in the current valuation. So a businessman make the strategy based on the current assets, but as a retail investor, we are not making. He is prepared to give and take delivery in case of one-way movement. He always target to earn daily revenue or accumulate if the prices fall, or distribute if the prices rise, with no love or hate with any of the stocks. He only loves his daily profit. I'm talking about the businessman. A businessman is who want to earn the revenue every day. He will accumulate if the prices is falling and distribute irrespective of whatever it may be. He will sell going on when the price is selling. But we are not doing it, and he is not having any love or hate. Whether he's bought anything or he's producing anything, he is not having any love or hate. His target is only to make the profit. But are we doing the same thing with our portfolio? That is what the question is. So what I'm suggesting is make a list of your portfolio stocks in the jobbing file, but trade only in the large cap stocks. This may not be applicable for very, very volatile or small cap scrape or those type of stick. This particular strategy will be more suitable for the large cap stocks.
keep max quantity as 10% or 20% of each of your portfolio stock holding and required notional trading capital for taking delivery in case of one-way movement. So suppose you have, say, 5,000 shares or you have 1,000 shares. Keep the max quantity as 10%, maybe 100, maybe 200, and then start doing the trading and see, are you able to make the money from that portfolio every day or not? So that is our target. Keep buy and sell quantity as 1/5 or 1/10 of the max quantity. Suppose your max quantity is 100, you can keep the buy and sell quantity as maybe 10 or maybe 20, like that you can start it. Here what I'm trying to do, how to make the money every day. Find out average IT of your stocks from day high and day low in Google Sheet. Google Sheet has a formula by which you can calculate the ITR of any stock. Keep setup as 1/4 or 1/5 of ATR and keep LTP as the buy and sell rate. You can target for rupees 100 to 2,000 per square of trade in each stock, depending upon max quantity, trading capital, buy and sell quantity, and buy and sell setup. That is your target. As many square of traders are taking place, you should make maybe 100, maybe 500, maybe 1,000. You make your jobbing fee like that, and then you start making the profit. Keep manual adjustments wherever required to book early profit or increase the trades that you can do it. Now here, even if the market opens, gap up or gap down by even by 1,000 points, 2,000 points, you will make money. That is what I can assure you. If the stock in your portfolio do not move in one direction whole day, even if the market opens say by 2,000 points down, and if it's not going further down to 4,000 points, then there is no problem. If it opened by 1,000 points, 1,500 points, and then if it is moving in a zigzag movement, you will make money. If stock moves in one way direction whole day, take the delivery or give the delivery of the stock, your average return will be significantly high, since large cap stocks tend to move back to the mean pricing. So you should not bother about, say, for Reliance or say for HDFC Bank or maybe Bajaj Finance. So even if they move in one direction, and if you are taking the delivery because you have kept your 10% of the capital, you will make huge money. But you should be willing to give the delivery. Now this particular setup I tried for last 15-20 days. Now I come to a conclusion that there are 3 setups possible. So those 3 setups I'll be discussing. One is when you have a neutral, you think the market is going to move in a neutral way. That means that market may go 200 points up or may 200 points down, but you have a neutral view of the market. Then you will use this setup. What is this setup is? You are starting with the side as the both. When you have a neutral setup, when you have a neutral outlook, that means you are prepared to buy also, you are prepared to sell also for each trade. And here I've taken the target as 1,000 rupees. That means for each square of trade, I will make 1,000 rupees. 250 into 4,000. All this stock I have calculated 1,000, and I've tried this setup. So this I was using. Then I came to know that when the market is falling continuously or market is going to up, then what is going to happen? So then I come up with the 2 more setup that I will show you after this. So here the capital required is like this. This I've explained last time, and this I explained this setup in detail in my last webinar. So this is basically for when you have a target, when you have a market outlook as the neutral. Your target here, our target is to make 10,000 to 20,000 per day. Assuming that the 20 square off has taken place, you will make 20,000 per day. Now the issue is, if the market in the trending market or with the bear market, or if in the bull market, say right now the market is continuously in the bear market, then what should I do it? That is the question. Like Bhatia ji said just some time back, he said my portfolio is down by 25%. Somebody's portfolio is down by 30%. What he will do? Whether you can use this setup or there should be any change in the setup. So that is what I'm coming up. In case, if you feel the market is continuously going down, what is happening right now, then you should have this setup. You will always start with the sell. You put the quantity as the sell first. The advantage of this thing is that it will first sell, then only it will buy. And that is what I tried on last Friday and Thursday. And again, I made around 15 to 20,000 rupees in both the days because the market was falling continuously. So I have given the instruction that first you sell my quantity. Whatever I have a target of same 1,000 rupees,
what I have shown in my earlier slide. Here also I have the same target as 1,000, but I give the instruction ki sell first. Don't do both. That means ki in the earlier we are using ki buy or sell as per the market is going. No, here I will be doing the sale first. So if the sale happen, then when the market is falling continuously, I buy again. So I will make my 1 square of trade and there I will make the money. And here the probability of increasing the quantity is not there. Because when the market falls continuously, then my quantity may increase here. But here, since I'm selling first and then I'm buying, so I'm making my square of trade and I'm making the money. So this is particularly applicable when the market is going down continuously or when you think that market is in the bear phase. You should always start with the sell side. Now, similarly, if you think that market is going up, now it may start maybe after 10 days or 15 days or 1 month. We don't know when the market is going to reverse. When it happens, then you should start with the buy first. That means the market is going up. You think that BPCL will go up. First buy 250, then only it will sell 250. So you will make your 1,000 rupees for each trade. So these were the two major variations which I have discovered now. And now I'm using this as extensively. If I see in the morning the SGX Nifty down by 50 point or maybe 100 point or 150 point, the Dow is also down. That means the market is going to be down today. I will start with the sell first. And if I see the SGX Nifty is plus, if it is trading maybe by 100 point plus, or Dow is also trading high, then I start with the buy. So this setup you can try, and at least I'm making money. If you have anything on this, you can say. So these are the three setup. One is the neutral, start with the both. When you are a bear, start with sell only. And when you are a bullish on any stock or bullish on the market, start with the buy. You will definitely make a money of 5 to 10,000 to 15,000 per day without any issue, without any tension. That was my thing with the target based trading. Anybody want to say anything on these three, 4 slides? Any comment? What about the charges in Zerodha? Zerodha will be same 20 rupees. Zerodha will charge same 20 rupees. No, same your brokerage 20 rupees per trade. But it is on the cash basis. No, then it will be nil. Then if you are taking delivery, then it is a nil. Delivery in both the cases is nil. Only if the intraday is there, it will be 0.03% subject to maximum 20 rupees per trade. 0.03% or 20 rupees, whichever is high. Whichever is 0.03% subject to maximum 20 rupees. So that is, that is applicable in case of Zerodha. Per order or per order. Earlier they were making on the total quantity in the day, but now they have changed that system and now they are charging on the per trade basis. So for every trade, on this slide, on this slide, the buy and rise. Suppose if the first order is placing buy, but subsequent orders buy and sell it makes, right, sir? Yeah. So when it makes buy and sell, first buy is going continuously upward, their sell orders will not get executed. Then the sale will start. At least the major problem is coming with the buy side only. So buy will happen. So you have bought at 250 at say for Bharti Airtel. Now you have bought say at say 650, and then when it went to buy say 4 rupees, then you sell at 264. Then if it goes further up, then it will sell again. That will happen. But at least then you are ready with that, that you are going in that direction. Otherwise, what is happening is that when the market is falling in the both sides, you are continuously going and buying only. So that was creating a problem. At least here, when you have a 10 rupees or 8 or 10 rupees chance, you have all the probability that you can make the profit. And that problem will not come, which was coming in with the both edges side. Here, the problem will be much less. If you are starting with the buy, and in case of bear market, starting with the sell. Okay. So in the buy, suppose if it is 250 is a Bharti Airtel, so 254, it places a buy order. Buy order, right. No. So then buy order will place at 246 only. 246, it will place a buy order, right? So then it goes to 250. No. It will be, it will buy only. So it will be order will place at 246. It will not place a sell order, correct? Correct, sir.
It will not place a sell order. It will place a buy order on 246. Now, if the 246 the buy has happened, then it will place a sell order. And since the market is going up, so the probability of making profit is much more. That is what I'm trying to say. At least this not happen that no, I started selling first. It has so many times it happened in starting with the both. I'm selling more and more quantity. That was becoming a problem. So here at least you can solve that problem up to some extent. Not the full extent, but some extent you will be able to solve the problem. Correct. Okay. Yeah. Okay. Any other view on these slides? Try this slide. I'm telling you, you will make the money. At least trade with 10% of your quantity, or trade with 5% of your quantity. Suppose you have a say 200 shares of say Bajaj Finance or maybe any share. Try with 20 share at least. Even if you are making 100 rupees per trade, you will be happy. Okay, I have made 1,000 rupees or 2,000 rupees in that particular day. So try with that one, and since there are so many scripts are in your portfolio, maybe 20 script, maybe 25 script, it is manually simply impossible to track those prices. So if you make this setup, keep a target as same in all the stocks. What I have kept it 1,000 rupees in each my thing. So my mind is very clear that whenever any trade will take place, I will make 1,000 rupees. So that gives me a good incentive or good follow up. TK or good target is there. Like that, if you have a target based trading, you will make a good money. That is what my suggestion is. Algo trader is a tool, but from the tool we have to make the money. So that is that is what we have to look into it. Okay. Now let us understand how this our advanced strategy what we have developed this is working. This was the question was raised even the last webinar also. They wanted to understand how this algo trader is working. Particularly this algo trader advanced setup what we are using it now. Algo trader was initially a tool which was developed around 6 months back. But on that particular tool, we have made a significant improvements. Now with those improvements, let us see how this is working. So because that is very, very important. Unless you know exactly how it is working, then it will not be clear what you are doing basically. So suppose Reliance, let me hide this thing. Yeah. Suppose Reliance CMP is 2,600. Now you want to buy maximum quantity of 100 shares with 10 shares each at 10 rupees set off, or sell maximum quantity of 100 shares with 10 shares each at 10 rupees 10 set off. Your indicative buy and sell price would be, if you are doing manual trading. The manual trading way, suppose you have made up your mind that right now Reliance is 2,600, you want to buy 100 shares total in a day, and 10 shares for every 10 rupees either fall or rise, buy or sell. So your indicative buy and sell price will be like this. Suppose the price is falling. So manually what you will do, you will buy a 2,590 10 share, then 2,580 10 share, 2,570 10 share. Like that, you go on buying it. So if there is a trend trade had taken place from 2,590 to 2,500, your average will be 2,545. If you are doing manually trade, manually you are doing this trade, and then you are putting if you put the trade order 2,590, 280, 270, the buy will take place if the market has fallen to 2,500, and you will buy the 100 quantity, and your average will be 2,545 in case of buying, and selling it will be 2,655. Okay. Now algo trader. Now algo trader with this advanced setup, it will trade in such a way that your average buy price will always be 2,545, average of 10 trades or lower. It will never be above 2,545. With the earlier algo trader concept, when we started this algo trader initially around 4 months back, that time this concept was not there. That time it was not guaranteed that my average price will be 2,545 or not. It may be even 2,560, it may be 2,570, depending on the chain reaction happened, depending on how many volatility was happened. But now with the advanced setup, it is guaranteed your average buy price will always be 2,545 or lower, and average sell price will be 2,655 or higher, depending on the number of square offs taken place if price has moved from 2,600 to 2,500. कहने का मतलब ये है कि if the price is moved from 2,610 to 2,700
And in the process, in between, if there are 4 or 5, your square off has taken place, your average sale price will be either 2655 or higher. It cannot be lower. But in the earlier setup, this was possible. जो पहले का जो हमारा सेटअप था, initially when we started Algo Trader, at that time it was not guaranteed. And this was really bothering us कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा क्वांटिटी इतना जल्दी खत्म हो जा रहा है और मेरा एवरेज प्राइस मेरे को नहीं मिल पा रहा है. But now with the advanced setup, what the logic we have used it, now it is guaranteed कि you will get buying में 2545 or lower and selling में 2655 or higher. If the price, suppose the price doesn't move to 2500, if the price goes up to 2540 only, then it will take the average of 2590 and 2540. Then the average price will be 2565, average of 5 trades, or again the lower. Or if it moves upward to 2600 only, that means it doesn't move to 2700, then your average price will be 2635 or higher. So that means that now you are mentally prepared when you are starting your Algo Trader, कि what is going to be your average price, and with the average price, how much the quantity will be there, and the price will always be better than that only. That means कि buying side में उससे नीचे रहेगा और selling side में price ऊपर रहेगा, या तो average रहेगा या ऊपर रहेगा. So you will not be affected by the fear and greed played by the market players. So that is the significant advantage in the advanced Algo Trader concept. ये पहले नहीं था और ये अभी आ गया है. Okay. Now इस लॉजिक को कैसे हुआ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. मैं ये तो जैसे कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है ये बताया मैंने. Now I will tell you how this is happening. This is happening due to the control chain reaction. Now how this control chain reaction is happening, that I am explaining you. Suppose the stock is UPL, current market price is 700, buy and sell offset is 10 rupees, buy and sell quantity is 100, and max buy and sell quantity we have kept as 600. So this is our initial setup. I have used these 5 colors: CMP for yellow, buy order for green, sell order for pink color, quantity as the without any color, and average as the red color. So 710 here, the 710, and then जो मैंने 1 लिखा है, that indicate that 710 rate is triggered, and 1 indicate that the trade is square off. And when I putting a cross, that means the order is already exist, hence new order will not be placed. This is what we are doing now. And this was not happening in the earlier uncontrolled chain reaction. Now in the control chain reaction, this control we have put up, कि if the order is already there, new order will not be placed. So I'm guaranteed of getting my average price, which was not happening earlier. So suppose I'm starting with 700. Now 700 is the current market price. So when the Algo is starting, it is placing 2 order, 1690 buy order and 710 sell order, and my quantity as 0 because it is just starting of the Algo. So neither I'm short, neither I'm long. So my average is also 0, my buy quantity is also 0. This is just starting. Now the rate has gone to 710. At 710, what it will do, it will place, and because the 700 rate is triggered, because my 710, my order was there. So 710 rate is triggered. So it has placed 1 buy order of 700 and 720 sell order. And my quantity has become minus 100 because I have sold 100 share and my average price is 710. Now the price has gone further up. The price has gone to 720. And since my 720 rate is already there, so my second trade is triggered off. So 720, my 100 shares have been sold, and it placed 1 order of 710 buy and 730 for sell. And my net quantity is minus 200. And my average price has become 715. Now the price has come down from 720, the rate has come down to 710. Now as 710, my price is triggered because 710, the rate, the 710, the rate was triggered and it has placed 1 700 buy order. 710 buy order is triggered. You can see the item number 33. The 33 710 my buy order is triggered, and at that it has placed 1 700 rate and 720 rate. Now since the 700 rate is already there, the 700 order will not be placed for buy. This is a difference now. This was not happening in the earlier Algo Trader. Now in the new Algo Trader, when the 710 my buy order has happened,
with the item number 3, you can see the 700 order was placed, but it was not placed because 700 rate is already there. So it is not placing 700 and rate, but 720 rate is not there. So it has placed a 720 order. So, and now my net quantity become -100 because I bought 100 share. Now from 710 rate goes to 720. So when the rate goes to 720, my 720 one order was already there. So that 720 sale has happened. And because the 720 sale has happened, so my quantity has increased from -100 to -200, and it has placed 2 order, one 710 buy order and one 730 sell order. Now one 730 sell order is already there in the system, so it has not placed 730 order. Earlier it used to place, so now the 720 order is not placed, and my net quantity is -200, and my average has become 720. Then price goes to 730. Here, my 730, it places one 720 buy order and 740 sell order, and 5 and 5 by 730 sell order is triggered. So that is the reason my quantity has become -300 and my average price becomes 723.3. Then the price goes down, 720, it places a 710 order, but 710 rate is already there. So 710 order is not placed, but my sale order is placed 730 and my quantity become -200 because the rate has gone down, it is bought. Then again rate goes to 730. So what you can observe rate ki it is not repeating any order. If the order is there already in the system, it will not place the order, whether in the buy side or in the sell side. That is the major significant change what you have done it. So because of that, my average price is increasing. So -200, it become to -300. My average price become to 726.7. Then the average price becomes 730. The price went 730 to 740. 730 and 750 order was placed, and there was no 730 and 750 order pending in the system. So it has placed the orders. Then the 750 rate had gone. My average price is further increased to 734. And finally, my price has become 732.5 because the price has come down. Now here, if you observe all these things, there are 2-3 major things are observing. 2 or 3 major things have come up. Number one, there is no repeat order for the same order for the same rate. So because of that, my max quantity is increasing. Malab, I am able to use my max quantity to the maximum possible. Here you can see up to the second last line, the price has gone 750 and my quantity was 500, -500. If the earlier system you would used to, we would have used, my 500 would have been consumed by maybe by 720, maybe by 710. But here I am extending my my chain reaction up to 750. I can go up to 760 also, because still I am short by 200. At 740, I'm short by still 200 quantity is there. I can go up to 600 by max quantity. So you are continuously increasing your average buy price. Number one. Number two, the major thing is your net short or long quantity will always be in directly proportional to the price moved by number of set-offs. Can you observe this thing? If the price is moved by 4 times, or if the price is moved by 3 times, your short quantity is -300. So from the 700, if the price is going to 740, you can see your net short quantity is -400. If the price is going to 750, your net quantity is -500. And again, the price has come to 740 in the last line, last column, you can see your short quantity is -400. That means that with this advanced logic, you know very well how much the price will go and how much will be your exactly the net quantity short or long side. That is the significant advantage of the control chain reaction, which is not possible in the uncontrolled chain reaction. Uncontrolled chain reaction, you just don't know, and nobody knows what is going to happen. How much short will be there, how much long will be there, what will be your average buy price or average, nobody knows. But here you know exactly. So you can plan your trade. You can plan your average pricing. You can plan your net short and long quantity. This is extremely useful for your portfolio-based trading. So Algo Trader will help the user in managing the max quantity and the set-off as per his outlook before starting the Algo Trader. That means कि you know in advance. जब आपका एल्गो ट्रेडर चालू हो रहा है तभी आपको पता है कि अगर मान लो 750 रेट चला गया तो मैं 500 शॉर्ट होऊंगा, अगर 720 चला गया तो मैं 200 शॉर्ट होऊंगा. तो
इतना अगर आपको शुरू से अगर आइडिया लग जाए तो दैट मीन यू कैन इजीली प्लान योर ट्रेड. दैट इज द मेजर एडवांटेज. बेसिक वर्जन जो हमारा पहले वाला था उसमें इट वाज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन व्हेन वी स्टार्टेड द थिंग. प्रॉफिट यूज्ड टू बी स्लाइटली हाई बट देयर आर लॉसेस वर यूज्ड टू बी वेरी वेरी हाई. पुअर एवरेज एंड वेरी डिफिकल्ट टू हेज. Now with this new version which we have started in all the three, that means in AlgoTrader Prime and AlgoTrader Cloud, in all three we have introduced the control chain reaction. Initially we had not started in the basic version, but then we had a discussion and we said that the same benefit should be given to all the three. So now all AlgoTrader Prime, AlgoTrader Cloud have the control chain reaction. Profit may be slightly less, but the loss will be significantly less. You will get a much better average and you will have absolute control in your trades in advance. So you have to ensure that you are getting this control chain reaction. You can hedge your net position with options as net position will not change suddenly. पहले वाले में क्या होता था, एकदम से -200 से +200 हो जाएगा. आप अगर करेंसी में ट्रेड कर रहे थे तो आप देखते थे कि यार +10 चल रहा है, सडनली दो पैसा रेट ऊपर गया और -10 हो गया. अभी ये नहीं होने वाला है. अभी एग्जैक्टली कि जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही आप जो है क्वांटिटी आपका शॉर्ट होगा और या लॉन्ग होगा. सो यू कैन कंट्रोल योर ट्रेड वेरी इजीली विद द कंट्रोल चेन रिएक्शन. एनी क्वेश्चन ऑन दिस थिंग नाउ? कंट्रोल चेन रिएक्शन के ऊपर एनी डाउट? नो? ओके, तो आई होप आई एम ऑडिबल. हाँ जी. इसमें सिर्फ ये था कि ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा ना, जो आपका एवरेजिंग होगा, यानी उसमें ऑटोमेटिकली होता रहेगा. आप अगर ऑटोमेटिकली आपका होता रहेगा और आप देखेंगे शाम को जब आपका देखोगे तो आपको एग्जैक्टली आपको ये मिलेगा कि आप कितना शॉर्ट हुए हैं, कितना लॉन्ग हुए हैं, और आपका एवरेज प्राइस या तो उसका एग्जैक्टली मिडिल रहेगा या उससे बढ़िया रहेगा. ओके, मतलब जैसे मेरे पहला वाला साइड में बताया था, हमें सेटअप करना है सिर्फ अपनी गूगल शीट में, बस गूगल शीट में सेटअप करना है. बाकी ये सब काम आपको ऑटोमेटिकली कराएगा. ये जो इन्होंने एडवांस लॉजिक जो लगाया है उसमें भी ये बेनिफिट आ रहा है, क्योंकि अनकंट्रोल वाले में नहीं आता था ये, और इनिशियली बहुत प्रॉब्लम हुआ था. ये जब शुरू में जब हमने एल्गो चालू किया था अपने, तब ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा था. बट विद द न्यू सेटअप ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी. एंड यू कैन नो एग्जैक्टली कि आप क्या करने वाले हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया. तो मार्केट कैन नॉट प्ले विद यू नाउ. नहीं तो जो मार्केट जिस तरह से आपको फियर एंड ग्रीड लाके और आपको वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता था, वो सब अभी वो कुछ हो ही नहीं सकता. तो आपको पता है भाई मैंने 100 शेयर का मैंने मैक्स क्वांटिटी डाला है. आज का अगर मेरा 20 रुपए का मेरा सेट ऑफ मतलब मैक्सिमम सेट ऑफ मेरा 20 रुपए का होने वाला है और 10 रुपए सेटअप आया तो मेरा 50 ही क्वांटिटी मेरा लॉन्ग होगा. ऐसा नहीं है कि मतलब 100, 150, 200 कुछ हो जाएगा. पहले हो जा रहा था ये, अभी नहीं होगा ये. So this is a significant benefit now. Okay. Now, which are the unique? One question. Yeah, बोलिए. One question. So in this case, if you have the stock with you, then you can start with sell, right? You don't need any capital or need to place any. Yeah, certainly. वो मैंने बताया था ना, वो पहला अगर आप बियर का आपका ये है, सपोज यू आर bearish on a stock, you start with a sell. तो वो सेल से चालू करेगा और बाई करेगा, और आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो वो बाई नहीं करेगा, वो सेल ही करेगा सदा ना. आपको लॉजिक समझ में आया भाई? आपने सेल से स्टार्ट किया पहले. हाँ, वो आपने सेल से चालू किया, आपका 100 शेयर सेल हो गया, उसके बाद में नीचे गिरा तो बाई कर लिया. अभी वो और आपका बाई करेगा ही नहीं, वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है. ये एक हमारे जो एक मेंबर थे उन्होंने बताया था ये वाला लॉजिक. वो ऑप्शंस में जबरदस्त ये वाला काम कर रहा है. वो अपना क्या करता है कि वो कैपिटल नहीं रखता है एंड देन ही स्टार्ट डूइंग द ट्रेडिंग इन दैट वन, बट ही डूइंग ओनली विद द बाइंग ऑफ द ऑप्शंस. बैंक निफ्टी बाई करके वो चलते हैं वो, एंड उन्होंने अपना जानबूझ के अपना कैपिटल 0 रखा हुआ है एंड जबरदस्त वो उसमें से आराम से 15-20 हजार रुपए कमाते हैं. तो मतलब ये इज ऑल एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट. ओके. नाउ व्हिच आर द यूनिक रिस्क कंट्रोल. के अंदर में ऑप्शंस का आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि ऑप्शंस का भी कुछ एक हेज कर सकते हैं. हाँ, ऑप्शंस का तो हेज तो यही है कि आपको कंट्रोरियन व्यू लेना है. अगर जैसे आपका अगर कंटिन्यूसली मार्केट गिरता जा रहा है, आज आपको लगे कि अब तो मार्केट यार जो है मतलब 10% मतलब आपका स्टॉक 6-8% गिर गया है, सो इट्स अ राइट टाइम कि यू कैन मतलब टेक अ कंट्रोरियन व्यू एंड देन यू कैन सेल योर कॉल और पुट, और यू कैन बाई और कॉल बाई आल्सो. यू कैन डू एनीथिंग नाउ. बट वो मॉर्निंग में करने का फायदा नहीं है. बेटर करो थोड़ा वेट करने के बाद तो इवनिंग तक में, तो इनवेरिएबली क्या कि नेक्स्ट डे द पोजीशन थोड़ा रिवर्स होता है थोड़ा, तो यू कैन टेक द प्रॉफिट एंड कम आउट. Okay.
So now, which are the unique risk control features what we have introduced? Number one, you have a lower and upper circuit rates to control your lowest buy and highest sale rate in case of unidirectional movement. That everybody knows. कि हम जो LC और UC लगा देते हैं, that LC and UC is independent of NSE rate. We have our own LC and UC rate. तो उसके नीचे वो buy नहीं करेगा, उसके ऊपर वो sell नहीं करेगा. That is the number one control what we have. Number two control what we have is maximum buy and sell quantity to control the net maximum buy and sell quantity during the day. Now इसके ऊपर काफी confusion है लोगों को. Now ये maximum buy और जो sell quantity है ये net वाला है. It is not that कि total buy इतना होने वाला है. At any point of time, algo trader will control कि what is your net position in the buy side और sell side. उसको control कर रहा है ये नहीं है कि आपने जैसे मान लीजिए 1000 का आपने बाई मैक्स बाई रखा, 1000 का आपने सेल रखा हुआ है, तो 1000 बाई करने के बाद में रुक जाएगा, ऐसा नहीं है. वो नेट पोजीशन देखेगा कि आपका नेट लॉन्ग पोजीशन 1000 हुआ है नहीं हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो इट विल गो ऑन बाइंग इट. सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज द मैक्सिमम बाई एंड व्हाट इज मैक्सिमम सेल क्वांटिटी. इट इज द नेट. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका मैक्सिमम बाई और सेल कितना है उसको कंट्रोल कर रहा है. आई थॉट आई विल क्लैरिफाई दिस पॉइंट टुडे. तो इसमें हम काफी 2-3 क्वेश्चंस आए हमारे लोगों के, बोले कि यार हमने तो ये रखा था और इसने ज्यादा बाई कर लिया. तो हमने कहा भाई आपका नेट देखो, आप नेट क्वांटिटी को वो कंट्रोल कर रहा है. ए न्यू ऑर्डर विल नॉट बी प्लेस्ड if any new order exceeds the net max quantity including open positions, existing pending orders and the quantity of the new order. यानी कि जब तक आपका वो नेट क्वांटिटी, अगर आपने 1000 का रखा है तो नेट क्वांटिटी के अंदर आपका एक तो कितना आप ऑलरेडी आपका वो पोजीशन लॉन्ग है, प्लस नंबर 2 आपके ओपन ऑर्डर्स कितने पड़े हुए हैं, उनको जोड़ने के बाद में जो नया ऑर्डर से जो क्वांटिटी आ रहा है वो अगर एक्सीड कर रहा है आपका मैक्स बाई से तो ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा. तो दिस आल्सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. कितनी बार हमने जब ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम उन लोगों को आ रहा है कि जो आपका मल्टीपल रोज यूज कर रहे हैं. तो मल्टीपल रोज के अंदर ये वाला इशू आता है कि वो मल्टीपल रोज के अंदर वो सारा का हर एक रो का वो क्वांटिटी वो देख रहा है. वो अगर मान लीजिए आपने 200, 400, 600 का आपने अगर मैक्स क्वांटिटी रखा हुआ है और अगर आपका 300 का ऑर्डर आ गया तो वो आपका 200 वाला उसको वो आगे जाने ही नहीं दे रहा है वो, क्योंकि वो 200 पे आपने वहां पे जो है मैक्स कंट्रोल लगाया हुआ है वहां पे. तो मल्टीपल रोज के अंदर मिनिमम ऑफ द ऑर्डर को कंसिडर करेगा. नाउ बाय एंड सेल ऑर्डर विल बी रेस्ट्रिक्टेड. ये आपका ट्रेडिंग रेंज वाला है. द बाय एंड सेल ऑर्डर विल बी रेस्ट्रिक्टेड इन द स्पेसिफाइड ट्रेडिंग रेंज फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. जो हमने देखा होगा, एक वी हैव अ LCR, वी हैव अ UTR, देन व्हेन वी हैव अ LC एंड व्हेन वी हैव UC. तो जो आपका ये ट्रेडिंग रेंज वाले हैं उसके अंदर आपका चेन रिएक्शन चलता रहेगा, बाय सेल दोनों होते रहेंगे. लेकिन जैसे ही वो ट्रेडिंग रेंज के बाहर गया तो इट विल आइदर ओनली बाय करेगा या ओनली सेल करेगा, आपका चेन रिएक्शन नहीं होगा. सो दैट आल्सो वी हैव टू वेरी वेरी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट. यानी कि जैसे आपका 700, 800, 900 और 1000 है, मतलब 700 का आपका LC है, 1000 का आपका UC लगा हुआ है और 800 और 900 का LTR और UTR लगा रखा है. तो जो बाई सेल का जो चेन रिएक्शन हो रहा है वो 800 और 900 के बीच में होगा. 900 के 900 से लेके 1000 तक सिर्फ वो सेल करेगा और 800 से नीचे 700 तक से वो बाई करेगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ LTR एंड UTR. सो दिस इज अनदर रिस्क कंट्रोल फीचर है. वो इसलिए रखा था कि मेरा एवरेज खराब नहीं हो जाए. नहीं तो क्या कि हमारा एवरेज प्राइस जो है वो जब वो ऊपर से 800 पे 1000 पे जाके वापस जब नीचे आता था तो वो फिर बाई चालू कर देता था, तो उसकी वजह से मेरा एवरेज खराब हो जाता था. तो उसकी वजह से हम ये नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे. नाउ एग्जिट कैन बी बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग ऑफ प्रॉफिट टारगेट एंड स्टॉप लॉस. नाउ इसके अंदर ये एक और आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपका कोई भी प्रॉफिट टारगेट या स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया है तो नो फर्दर ट्रेड विल बी अलाउड टिल प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस इज रिवाइज्ड. कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और आपने सोचा कि यार मेरे को तो और ट्रेड करना है, तो आपने एल्गो को बंद करके वापस से एल्गो कर चलाया तो फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू वही है. आपने वैल्यू जैसे स्टॉप लॉस 5000 रुपए रखा हुआ है तो 5000 रुपए आपका वो ट्रिगर हो गया, आपके बाहर आ गया. अभी आपने वापस जब उसको एल्गो को वापस चलाया तो वो 5000 का तो फिगर वहां पर ऑलरेडी है ही है ना, तो वो फिर वो स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देगा. सिमिलरली प्रॉफिट है तो फिर वो उसको ट्रिगर कर देगा. तो अनलेस आप उस वैल्यूज को रिवाइज नहीं करोगे आपका आगे ट्रेडिंग नहीं होने वाला. सो दिस आल्सो यू हैव टू टेक केयर. अगर आपको उसी स्टॉक के अंदर वापस से ट्रेडिंग करना है
तो आपको स्टॉप लॉस या जो प्रॉफिट टारगेट उसको रिवाइज करना है। अगर नहीं रिवाइज करोगे तो आगे ट्रेडिंग करेगा, करते ही आपका वो वापस स्टॉप लॉस ट्रिगर करके आपको बात कर देगा। मल्टीपल स्टॉप लॉसेस विल नॉट बी ट्रिगर्ड इफ एनी वन स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड इन केस ऑफ मल्टीपल लॉस। ये पहले वाले एल्गो में प्रॉब्लम आ रहा था, ये नया जो एल्गो वाला जो अपने नया जो एडवांस जो लॉजिक डाला है उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। पहले वाले में क्या हो रहा था कि एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होता था तो मल्टीपल रोज 4 है तो चारों में जाके वो स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर देता। अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, चारों में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। ये एक नया कंट्रोल हम लेके आए थे। Then option to start trading with buy sell, both buy and sell orders, any buy and sell motive each trade. तो ये तो फिर we all knows कि we have option to start with buy or sell or both buy. This is one of your risk control measures. Then option to start the algo trader with your own ये 3 सिस्टम हमने डाले हुए हैं प्राइसिंग का। You can have your own buy or sell rate, you can have the NSE best bid or ask rate, और you can have a NSE LTP rate. ये तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। when you are putting your order, it will work. LTP लगाओ, bid ask लगाओ, या आपका अपना buy और sell लगाओ, जैसा भी आपका है, जो भी आपका आउटलुक है एंड जो भी आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन है। अब कंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब ये था कि अगर आपको 2 चेन रिएक्शन चाहिए तो you can have your buy and sell rate, you can have your bid and ask rate, but if you want only 1 chain reaction, then you should always use LTP rate. I always use LTP. अब आपके ऊपर अगर आपको 2 लगाना, जैसे भी निखिल बता रहे थे कि करेंसी के अंदर बिड एंड आस्क इज गिविंग द बेटर रिजल्ट, यू कैन यूज इट, यू कैन हैव अ 2 chain reaction simultaneously, or if you have your own buy and sell rate, it will have a 2 chain reaction. So these are all the unique risk control features what we have. Now chain reaction I explained last time, again I am explaining you today. The chain reaction is like a sharp razor. हमने एल्गो ट्रेडर एक टूल है। अब ये टूल जैसे एक चाकू को अगर आप हाथ में रख दो और अगर उसमें अगर आप अच्छे से उसका हत्था ना हो या हैंडल ना हो तो इट कैन रियली कट यू। सिमिलरली जो रेजर है, रेजर को आप हाथ में रखो और कब वो कट लग के खून निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चेन रिएक्शन ही वैसा ही है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो इट कैन हैव अ सीरियस stop loss, serious losses. So initially algo trader was launched with uncontrolled chain reaction, and it was observed because of the uncontrolled chain reaction it can lead to heavy losses in case of one way movement, कि क्वांटिटी आपका बहुत ज्यादा बाई कर लेता था ये और आपका रेट भी अच्छा नहीं मिलता था। So this was due to uncontrolled chain reaction. It can consume your max quantity very fast, resulting in very poor average or sale price in case of one way movement. Multiple trigger of stop losses were happening. If any one stop loss is triggered in case of multiple rows, may result in huge buying and selling, leading to huge losses. User cannot estimate, this was the major issue. User cannot estimate average buying and selling price in case of control chain reaction, in case of one way movement in advance before starting the algo trader. This was the major issue what we are facing it. उसी को हमने change करके we have brought the control chain reaction. Because I was not able to estimate what is going to be average buying or selling price. So after incentive R&D, algo trader started using advanced logic to control the uncontrolled chain reaction and not allowing triggering of multiple stop losses. Your net selling and buy quantity will always be directly in proportional to number of square off taken place in case of one way movement, as I explained earlier. Algo trader will trade in such a way that your average buy price will always be either exactly average of number of one-way trades or lower in case of buying and higher in case of selling, depending on number of square of trade. I've already explained in my earlier slide. Extremely powerful risk control measures have been introduced like LC, UC, LTR, UTR to control your losses in case of one-way movement. Now, would you like to hand over a portfolio of lakhs and crores of rupees to basically those who are trying to copy our concept, or to an expert developer having 2 decades of experience in algo trading as well as maintaining trading software or major FI? Now we have a algo developer with us who has a vast experience of developing the algos. So I would like to hand over my portfolio to him, not to copycats who are trying to just copying and then not coming up with all these risk control measures. Imitators, uncontrolled chain reaction may lead to heavy losses. That is what I wanted to say. Now, so any question on this, or I will just explain about what we are launching now. The launch of Algo Trader, Prime, Cloud, and Investor. The 4 versions we have. Now we have both for Zerodha as well as Finvision. Because this was a major demand coming from the Zerodha members. They don't want to switch over to Finvision.
due to various reasons. Main reason was that Finvicia is a smaller broker versus Zerodha. Zerodha is the #1 broker in India today. They have more than 10 lakh customers, whereas Finvicia was having around 80,000 to 1 lakh. So they were not comfortable moving to Finvicia. Although the Finvicia was giving a zero brokerage, Zerodha is charging 20 rupees, but even some members, they wanted to continue with the Zerodha. So based on their demand, based on their request, we have developed the same control chain reaction with all same risk control measures for Zerodha also. So now you have the 4 versions in both Algo Trader, Algo Trader Prime, Cloud, and Algo Investor. So Algo Trader, user can run only one instance of Algo Trader in his laptop. He can run single instance of Algo Trader or multiple accounts of family accounts in laptop. That means कि suppose you have 4 family accounts. You can run 4 multiple accounts in your laptop by Algo Trader only. That means you can have an Algo Trader which is available in 1,000 rupees per month. By that also you can run 4 or 5, whichever number of accounts you have in your laptop. Then you have Algo Trader Prime. Now these are available in both now, Zerodha as well as Finvicia. So Algo Trader Prime, user can run multiple instances of Algo Trader of multiple accounts of family member in laptop. That means कि आपको जैसे अपने लैपटॉप के अंदर करेंसी का अलग चलाना है, F&O का अलग चलाना है, इक्विटी का अलग चलाना है, इसका आपको कमोडिटी का अलग चलाना है, in the same account, so you can run multiple instances in the Algo Trader Prime for you as well as for your family member. So that is the difference between the Algo Trader and Algo Trader Prime. और सेम चीज को अगर आपको क्लाउड में चलाना है कंकरेंटली, मतलब कि आपको ये सारे चलाने हैं, तो यू कैन यूज द Algo Trader क्लाउड. यूजर कैन रन मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ Algo Trader concurrently for one account as well as family accounts from cloud without any need for laptop. And you can control through your mobile also. You can control through iPad, or you can control from anywhere sitting across the country. Even I'm sitting in the US and I'm able to control only because I am trading through Algo Trader Cloud. So you can run from anywhere. That is possible through Algo Trader Cloud. Now, Algo Trader is offered free to all Finvicia and Zerodha members of Algo Trader Prime, Algo Trader Cloud, being long-term investment solution. Now, Algo Investor, I had explained last time, the Algo Investor is basically for long-term investment solution. कि आपने पूरे साल का या पूरे 2 साल का आपने ऑर्डर डाल के छोड़ दिया कि भाई मेरे को तो रिलायंस 2000 में बाई करना है, मेरे को रिलायंस 3000 में सेल करना है. तो ये जो प्रोडक्ट है एल्गो इन्वेस्टर, नाउ दिस इज ऑफर्ड फ्री. मतलब जिसके पास भी एल्गो ट्रेडर या प्राइम या क्लाउड का अकाउंट है, दे कैन टेक द एल्गो ट्रेडर एज फ्री. लेकिन अगर आपको ये तीनों नहीं है और अगर आपको सिर्फ एल्गो इन्वेस्टर ही लेना है, तो देन यू टू पे द सेम 1000 रुपीज. अदरवाइज अगर आपने एल्गो ट्रेडर लिया हुआ है, then you are not required to pay anything for Algo Investor. It is just offered as a long-term investment solution. Algo Trader Cloud will never stop due to any break in electricity and broadband. No requirement of latest operating system of Windows 10, 11 in Algo Trader Cloud. But Algo Trader Cloud में जो हमारा अभी जो problem है इसमें Algo Trader और Algo Trader Prime के अंदर कि you should have a Windows 10 और 11, तो वो cloud में वो problem नहीं है. No additional charge for VPN or Robo or shared cloud services. किसी चीज का कोई चार्ज नहीं क्लाउड के अंदर. It is absolutely free, provided by AWS. हाँ, अगर AWS ने अगर कुछ चार्ज कर लिया, अभी वो 30, 40, 50 रुपए का महीने का बिल उनका आता है, वो भी जबकि when you are copying some file from your laptop to AWS server, then they charge some minor amount, 30-40 rupees. तो वो महीने का बिल आ सकता है, otherwise there is no charge. Algo Trader Cloud offered in AWS being free of cost for 1 year. Algo Cloud can be set up in mobile to control your trading from anywhere. Algo Trader offers 100% true automation. Cloud में अगर आपने लिया है तो रियली पूरा का पूरा आपका ऑटोमेशन हो गया. आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, सब चीज आपका वहां से हो जा रहा है. सिर्फ मोबाइल से आप अपना गूगल शीट को मॉनिटर करो एंड देन यू कैन डू योर ट्रेडिंग. सो दिस इज द सिंपली in tabular format डाला है. One Algo Trader Prime, Algo Trader Cloud and Algo Investor. 1000, 2000, 3000 and 1000 rupees rate. And कहाँ चलेगा? The major जो चीज है control chain reaction we have provided in all the 4. सभी के अंदर आपको control chain reaction मिल रहा है, जो कि पहले आपका Algo Trader में नहीं मिल रहा था. Now we are giving the same chain reaction in among all. This is now I am explaining the what is the difference between the jobbing file. Zerodha का jobbing file में
और फिनविशा के जॉबिंग फाइल में क्या डिफरेंस है? एग्जैक्टली सेम है, ओनली देयर इज अ टू डिफरेंस. वन इज कि हम उसके अंदर फिनविशा में वी यूज टू यूज डैश EQ इन केस ऑफ इक्विटी, और फ्यूचर में वी यूज टू यूज F आफ्टर द योर सिंबल नेम. जिरोधा के अंदर आपको डैश EQ यूज नहीं करना है और यहाँ पे F यूज नहीं करना है. नंबर वन डिफरेंस. एंड नंबर टू डिफरेंस है टाइप के अंदर. फिनविशा में यू यूज टू यूज C फॉर CNC, I फॉर MIS. इसके जिरोधा के अंदर आपको पूरा नाम लिखना है, CNC लिखना है, MIS लिखना है, और फ्यूचर के अंदर आपको NRML लिखना है, नॉर्मल वाला. ये डिफरेंस है, बाकी एग्जैक्टली सेम है और कोई डिफरेंस नहीं है. बाकी सब आपका LTR, UTR, ऑल थिंग्स आर सेम, ओनली दिस टू माइनर डिफरेंस. वन इज EQ जैसे मैं बताया, F बताया, और टाइप जो है CNC, MIS और NRML यूज करना है हमारे को. अदरवाइज एग्जैक्टली ऑल थिंग्स आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस. Buy and sale quantity should be in the lot size in F&O. Everything remain the same. There is no other difference. यहाँ पे वही आपको तीनों ऑप्शंस इसमें भी हैं. यूजर कैन यूजर ऑन डिजायर्ड बाय एंड सेल रेट. As buy and sale rates are different, there will be two set of chain reaction, as I explained earlier. Bid and ask rate. Algo will place orders on the basis of best bid and ask rate. If bid and ask rates are different, there will be two set of chain reactions. And LTP, if you want guaranteed maximum buy and minimum sell average rate, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यू वांट कि मेरे को कम से कम मेरे को इतना मेरा एवरेज प्राइस आना चाहिए बाई में, और सेल में इतना मिनिमम आना चाहिए, बाई में मेरा मैक्सिमम इतना, इससे ज्यादा मेरा नहीं होना चाहिए. तो वो अगर आपको लेना है तो यू हैव टू यूज द LTP, because here there will be only one set of chain reaction, so you will easily come to know how much quantity you are going to short or long, and what will be your average minimum price or sale price. First buy and sell order same, the same जो concept है, buy price less buy offset irrespective of LC and max by quantity. Here this is also same, there is no change. Only thing just I have explained the type. Equity may used to use CNC, MIS, FNO, and currency MODT के अंदर आपको NRML यूज करना है या MIS यूज करना है. यार इक्विटी में you can use CNC for cash and carry, MIS for your intraday trading. In case of F&O, currency and commodity, you used to use NRML for your CNC trade and MIS for your intraday trade. This is the difference. This is the second difference. Otherwise, all things are exactly same. There is no difference. I'm not explaining because we have explained so many times. Everything remains the same. There is no, absolutely there is no difference. और आपको सैंपल फाइल जिरोधा का चाहिए तो दिस इज द लिंक आई हैव गिवन देयर. तो दिस इज सेम हमारा जॉबिंग फाइल का जो फिनविशा में यूज कर रहे हैं, वहीं पे आई हैव एडेड वन मोर फील्ड देयर, सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर जिरोधा. So you can use for Jirodha as the same jobbing file, and then you can get your details from there also. Here, in case of multiple rows of same stock, this I want to explain again. In case of multiple rows of same stock, lowest of stop loss and profit target will be considered. अगर आपने एक 4 रो डाला है इसमें, तो जो भी लोएस्ट आपका स्टॉप लॉस होगा चारों में से, या जो प्रॉफिट टारगेट जो लोएस्ट होगा उसको कंसिडर करेगा. एंड मैक्स बाई and long net position quantity of each row will be considered subject to meeting all rows of the stock. यानी कि जो आपका मैक्सिमम बाई क्वांटिटी है आपका, वो आपका कंसिडर करेगा, बट मीटिंग ऑल द रोज ऑफ द स्टॉक. यानी कि स्टॉप लॉस और प्रॉफिट में तो लोएस्ट का कंसिडर कर रहा है, और जो आपका जो मैक्स क्वांटिटी है वो आपका हाईएस्ट को कंसिडर कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इट हैज टू मीट द कंडीशंस ऑफ ऑल द रोज. अगर 200, 400, 600, 800 है तो वो 200 का 200 वाले में कंसिडर करेगा, 800 में, लेकिन 800 तक जा सकता है वो, लेकिन वो पहला वाला रो 200 दी जाएगा, दूसरा वाला 400 तक जाएगा, ऐसा होने वाला है. लेकिन स्टॉप लॉस के अंदर जो मिनिमम है उसको कंसिडर करने वाला है. ये आपका था. अब ये इसका सैंपल फाइल है जो मैंने डाला है इसके अंदर. यू कैन सी द स्टॉक के अंदर आई एम नॉट यूज डैश EQ एनीवेयर. सिमिलरली जो CNC वाला में इसमें नहीं दिखाया मैंने इसमें. तो दिस इज योर सैंपल जॉबिंग फाइल. यहाँ पे आपको
₹2,000 API का चार्ज देना है इफ यू वांट टू यूज द ऑफिशियल API सर्विस। अगर आपको वो नहीं यूज करना है तो जो वर्कआउट करके दिया हुआ है, बट इन दैट केस यू कैन नॉट यूज द काइट वेबसाइट। सुन लीजिए ध्यान से, Zerodha is charging ₹2,000 per month for using the API services. अगर आपको वो API सर्विस को आप ऑफिशियली यूज करते हो तो देन यू कैन यूज द काइट वेब एप्लीकेशन अलोंग विद द API सर्विसेज। अगर आपने वर्कआउट जो यूज किया है, जो अभी हमने डाला हुआ उसके अंदर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे ₹2,000, बट एट द सेम टाइम यू विल नॉट बी एबल टू यूज द काइट वेब एप्लीकेशन, यू हैव टू यूज ओनली द मोबाइल एप्लीकेशन। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना है, काइट को नहीं यूज करना है, देन यू कैन यूज दिस वर्कआउट। अदरवाइज अगर आपको काइट भी यूज करना है, काइट का वेब वाला यूज करना है और काइट का मोबाइल यूज करना है, then you have to pay ₹2,000 per month directly to the Zerodha, and then you have to take the officially their API authorization from them, and then API key, all those things you have to do it. But अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो you can use this workout, उसमें आपको वेब अब यूज नहीं कर पाओगे। Then second difference जो है, if you start algo trader outside trading hours in Zerodha, no orders will be placed or seen। अभी फिनविशा में क्या होता है कि when you place any order outside the trading hour, तो ऑर्डर जाते हैं और ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं, एंड देन वी कैन सी इन द शून्य टर्मिनल कि हमको वहां ऑर्डर नजर आ रहे हैं कि मेरा ये ऑर्डर प्लेस हुआ था बट ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हो गया है। पर Zerodha के अंदर क्या है, वो ऑर्डर जाता ही नहीं है, आपको दिखेगा ही नहीं। दैट इज द रीजन यू नॉट एबल टू सी वेदर योर एल्गो इज वर्किंग और नॉट आउटसाइड ट्रेडिंग आवर। आउटसाइड ट्रेडिंग आवर में अगर आपने इसको एल्गो को चलाया तो ना ऑर्डर जाएंगे ना आपको वहां कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, यू विल सी नथिंग इज हैपनिंग। ट्रेडिंग आवर के अंदर ही आपको जो है एल्गो इन्वेस्टर आपका ऑर्डर डालेगा। जबकि फिनविशा में क्या होता था, आउटसाइड ट्रेडिंग आवर में आप ऑर्डर डाल रहे हैं तो आपको ऑर्डर जाते थे और ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते थे, तो यू कैन फाइंड आउट कि योर सिस्टम इज वर्किंग। बट Zerodha में वो पता नहीं चलता अपने को। ये उसका सैंपल फाइल है। तो सब्सक्रिप्शन का जैसे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एल्गो ट्रेडर ₹1,000 पर मंथ, ₹10,000 पर एनम फॉर 2 month फ्री सब्सक्रिप्शन। एल्गो ट्रेडर प्राइम ₹2,000, क्लाउड का ₹3,000 है, एल्गो इन्वेस्टर का ₹1,000 है। बट एल्गो इन्वेस्टर इज ऑफर्ड फ्री टू ऑल फिनविशा एंड Zerodha मेंबर्स ऑफ एल्गो ट्रेडर और एल्गो ट्रेडर प्राइम और एल्गो ट्रेडर क्लाउड। तीनों अगर आपने कुछ भी लिया हुआ है तो आपको एल्गो इन्वेस्टर इज फ्री है। गारंटेड रिफंड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट विद इन 30 days इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपने कुछ भी ये लिया और इफ यू आर नॉट हैप्पी, you can just say that I am not happy, I don't want to continue with this one, so your amount will be refunded back to you. But no refund will be made after 30 days under any circumstances. However, transfer of subscription to any other family member will be allowed. Existing subscriber can upgrade to Algo Trader Prime or Algo Trader Cloud to get 1 full year membership of Algo Trader Prime or Algo Trader Cloud from the date of differential. Suppose you are Algo Trader के basic वाले member थे and you want to upgrade to Prime, तो जिस दिन भी आप differential payment मान लो करते हो 1 साल का, तो from that day you will get 1 year membership. This is applicable only till 30th June. This is the payment detail. Please mention your ID number whenever you are making any payment, and please make the payment before the expiry. Otherwise, it will not work after the expiry of the subscription. And just send the subscription data sheet to Lalit Warang, and then he will do the installation directly to your laptop or cloud. जिसा भी है वो आपका वो install कर देगा वो. And this is the data sheet. So this was all about the presentation. Small presentation. Basically, we want to have a discussion, and then any problem you are facing or any issues you have, so that you can raise now. And my presentation is over. Now over to all of you. Any question, anything you want to discuss, we can discuss. Sir, can you show the last 2 slides once again to take a screenshot? Which one? This one? And the other one. This one? Yes, this one. Here the difference is only कि you are not using the dash EQ. That's all. Right. जो BPCL का जैसा है, तो BPCL के बाद में dash EQ हम लिखते थे फिनविशा में. You are not using dash EQ. You are writing your name straight away. और टाइप में I की जगह और C की जगह you will be using CNC और MIS. बस वही एक फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है. और तीसरा जो मेजर है Zerodha के अंदर, आपको डिसाइड करना है कि आपको ₹2,000 पर मंथ Zerodha को पे करना है या नहीं करना है. अगर आप ₹2,000 Zerodha को पे करते हो तो देन यू कैन यूज काइट एप्लीकेशन, काइट वेब एप्लीकेशन. अगर आपको ₹2,000 नहीं पे करना चाहते हो
तो देन यू कैन नॉट यूज योर काइट वेब एप्लीकेशन, यू कैन यूज ओनली द काइट मोबाइल एप्लीकेशन। कि वो जो वर्कआउट जो निकाला है वो वर्कआउट को वो इसी लॉजिक पे काम कर रहा है कि वो एपीआई सर्वर की जगह वो काइट वाला सर्वर यूज कर रहे हैं इसमें। जो ये अनऑफिशियल जो वर्कआउट जो निकला है वो यही है, और ये हमारा नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल था इंटरनेट पे, वहां से लिया है। और तो उसमें यही हमने जब पता किया, जब उसको लगाया चलाया तो यही देखा कि काइट वाला जो है यू कैन वर्क, काइट मोबाइल वाला काम करेगा, काइट वेब वाला काम नहीं करेगा, वो वहां से ऑटोमेटिकली आपका लॉगआउट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो ऑर्डर जा रहे हैं वो वेब सर्वर के थ्रू जा रहे हैं। ये जो एपीआई का जो हमारे ऑर्डर, एल्गो ट्रेडर जो ऑर्डर भेज रहा है वो वेब एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, और जब एक बार अगर वो सर्वर यूज हो गया तो उस सर्वर पे आप वापस से ऑर्डर नहीं डाल सकते हो आप। अभी फिनविशिया में क्या हो रहा है, फिनविशिया में आप एपीआई सर्वर डिफरेंट है और शून्य का सर्वर डिफरेंट है, तो यू आर एबल टू यूज बोथ। यानी कि एपीआई में आपके ऑर्डर जा रहे हैं एल्गो ट्रेडर के थ्रू, और शून्य के वेब या शून्य का डेस्कटॉप वहां से आप ऑर्डर और डाल पा रहे हो, बिकॉज बोथ द सर्वर्स आर डिफरेंट। यहाँ पे वो सेम सर्वर होने की वजह से you cannot place the order through kite web application, but mobile se you will be able to use it. Okay sir, kite mobile application if you are using kite mobile को use you will be able to use it, but kite web को नहीं use कर पाओगे आप। जो इंटरनेट पे हम जो kite डाल के यूज करते हैं algo prime where I should run in the laptop, algo prime that algo prime you can run in your laptop, algo prime laptop में चलेगा और आपका क्लाउड में भी चलेगा, क्लाउड में उसको क्लाउड बोलेंगे, बाकी द सॉफ्टवेयर इज सेम। हाँ, algo prime मैं लैपटॉप में चलाने का, then kite web में I can see the orders placed or not, that's it। नहीं आपका वेब वाला नहीं चलेगा, आपका काइट मोबाइल पे देख पाओगे आप अपने ऑर्डर। मोबाइल पे दिखेगा, वेब में नहीं दिखेगा। हाँ क्या, सॉरी, मोबाइल पे दिखेगा, वेब में नहीं दिखेगा। हाँ वेब पे नहीं, वेब से आपका ऑटोमेटिकली वहां से लॉग आउट हो जाएगा। जैसे ही आपने वो किया आप वहां से जो है आपका लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि आप उसी सर्वर को यूज कर रहे हो। नहीं तो फिर 2000 रुपए महीने का पे करो जीरोधा को आप। अगर आप जीरोधा का 2000 रुपए महीना पेमेंट करते हो तो देन यू कैन यूज द एपीआई सर्वर ऑफ जीरोधा एंड देन यू कैन यूज द योर वेब सर्वर आल्सो। So then your kite application mobile only, kite mobile only I'm using regularly, I'm not using web। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर तो काम करेगा ना आपका, फिर काम करेगा आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम। So in that case only thing is that you should not log into web, that's all। ना वेब में करोगे तो वहां से लॉग आउट हो जाएगा। मैंने सब ट्राई करके देख लिया वो। जैसे ये मैंने क्या किया था, मैंने वेब में भी लॉगिन करके रखा था, मोबाइल में भी लॉगिन करके रखा था, और मैंने एल्गो चलाया। तो जैसे ही एल्गो चलाया तो उसने उस सर्वर को कनेक्ट किया, तो वो सर्वर को कनेक्ट होते ये वाला सर्वर से वो डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। मतलब आपका जो वेब वाले से वेब वाला जो वेब एप्लीकेशन था वहां से उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये जो वर्कआउट जो निकाला है लोगों ने, मतलब किसी आईटी एक्सपर्ट ने निकाला है, ये हमने नहीं निकाला है, किसी आईटी एक्सपर्ट ने निकाला था। तो उन्होंने ये सर्वर को यूज किया है, एपीआई जो इसका काइट वाला जो सर्वर था उसको यूज किया है। देयर वर 3 डिफरेंट सर्वर, मतलब जीरोधा का। तो ऐसा नहीं कि वो लोग सडनली 2000 रुपीज डेबिट रेज करेगा, ऐसा तो नहीं। नहीं वो नहीं करेगा, वो अभी तक तो नहीं हुआ किसी का, बट आई डोंट नो, मतलब ऐसा कुछ हो तो आई कांट गारंटी यू, बट एज ऑन डेट आई हैव नॉट हर्ड कि दैट दे हैव डेबिटेड 2000 रुपीज फॉर दैट। एक्चुअली वो 2000 रुपए चार्ज क्यों कर रहे हैं मेरे को वास्तव समझ में नहीं आया। जब नो अदर ब्रोकरेज चार्जिंग अदर देन योर अपस्टॉक चार्जिंग 750 रुपीज, नो अदर ब्रोकरेज इज चार्जिंग एपीआई चार्जेस, आई डोंट नो व्हाई जीरोधा इज चार्जिंग। जीरोधा का तो मतलब अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दादागिरी हो गया हर चीज के अंदर। कभी भी वो लोग जो है, कभी तो ब्रेकेट ऑर्डर निकाल देते हैं, कभी आपका वो ट्रेडिंग लॉस वाला सिस्टम निकाल देते हैं। अभी उन्होंने ये एपीआई का 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। किस बात का 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं भाई, जब जो फिनविशिया 0 दे रहा है, आईसीसीआई मुझे 0 दे रहा है, एंजल वाला 0 में दे रहा है, तो भाई जीरोधा चार्जिंग 2000 रुपीज, इट इज जस्ट दादागिरी, कुछ नहीं है। तो लोगों ने उसका वर्कआउट निकाल के ये निकाला हुआ है कि आप जो है उनका उस सर्वर को उसमें उन्होंने यूज किया है, बट वो कब बंद कर देंगे अभी पता नहीं है। और आप क्या समझते हैं जीरोधा को पता नहीं होगा? जीरोधा नोज वेरी वेल कि ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर, बट दे आर अलाउइंग इट। इट इज वेरी सिमिलर टू विंडोज का। अब विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि वर्ल्ड ओवर मोर देन 50% ऑफ द कस्टमर्स आर यूजिंग पायरेटेड विंडोज, फिर भी वो चलाने दे रहे हैं उसको। इफ दे वांट दे कैन स्टॉप एनी टाइम, दे हैव ऑल द कंट्रोल्स विद दैट, बट व्हाई दे आर अलाउइंग इट? बिकॉज उनको पता है कि वो विंडोज का जो पायरेटेड ऑप्शन चलाने के बाद में भी कस्टमर बहुत सारे और उनके प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जैसे आपका ऑफिस हो गया है और यूज हो गया, तो दे आर अलाउइंग इट, बट इफ दे वांट दे कैन स्टॉप इट एनी टाइम। तो सिमिलरली जीरोधा को पता है कि लोग इनका सर्वर को यूज कर रहे हैं एपीआई के लिए,
बट इफ दे वांट दे कैन स्टॉप एनी टाइम, दैट नोबडी नोस। तो उस दिन फिर हमको 2000 रुपये देना पड़ेगा। So if I want to use Algo Prime for Zerodha, so anything charges extra? No charges, ना सर? नहीं, वो तो सेपरेट हो गया ना फिर आपका। मतलब आपके पास फिनविशा का भी है, और अगर आप यू वांट टू यूज इन द फिनविशा आल्सो, यू वांट टू यूज इन द Zerodha आल्सो, देन यू हैव टू हैव अ डिफरेंट अकाउंट। तो दो डिफरेंट हो गए ना फिर तो। Okay, can I cancel Finvicia and join Zerodha? That you can do it. Okay. अगर आपने उसको कैंसिल करके और अगर आप वहां जाना चाहते हो तो दैट इफ यू वांट यू कैन डू इट। वो तो चलो ठीक है, दिस नॉट एन इशू। Okay. बट मेरे हिसाब से फिनविशा में मेरे को तो आज तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं। देखो मैं पिछले 6 महीने से फिनविशा यूज कर रहा हूँ। मेरा पेमेंट जो है Zerodha से फास्ट आता है। मैंने 3 बार ट्राई करके देखा। अगर मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ तो 3 घंटे के अंदर मेरा पेमेंट वापस आ जाता है, जबकि Zerodha के अंदर इट टेक्स मिनिमम 36 आवर, 36 घंटे का पैसा आता है। और फिनविशा में मेरा 3 घंटे में पैसा आ जा रहा है। तो आज सबसे बड़ा वरी तो यही था ना कि मेरा पैसा कहीं गायब ना हो जाए। और जो मैंने इवन 5-5, 10 लाख तक का मैंने उनसे विड्रॉ लिया है और 3 घंटे के अंदर मेरे को पैसा वापस आया। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो व्हाई शुड आई स्विच ओवर फ्रॉम फिनविशा टू Zerodha? बट इफ यू वांट टू स्विच ओवर, इट्स योर चॉइस, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। फिनविशा का मोबाइल ऐप थोड़ा सा इतना कंफर्टेबल नहीं है, सेंसिबल नहीं यार, है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि फिनविशा के मोबाइल के अंदर यू कैन हैव 100 स्क्रिप्ट, यू कैन हैव 200 स्क्रिप्ट इन वन वॉच लिस्ट। Zerodha के अंदर 50 है, ठीक है, थोड़ा सा उसका इंटरफेस थोड़ा अच्छा है, बट उसके अंदर यू कैन नॉट कीप मोर देन 50, यू कैन नॉट कीप मोर देन 5 योर दैट वॉच लिस्ट। जबकि आपको फिनविशा में इशू नहीं है। फिनविशा में यू कैन गिव 10 वॉच लिस्ट, ऑन ईच वॉच लिस्ट में यू कैन हैव 200 स्क्रिप्ट्स। नंबर 1। नंबर 2 एडवांटेज कि इसका जो आपका जो डेस्कटॉप टर्मिनल है, डेस्कटॉप टर्मिनल का जो वॉच लिस्ट है और आपका जो इसका मोबाइल का वॉच लिस्ट, दोनों सेम चलता है। अगर आपने एक में अपडेट किया तो दूसरे में भी अपडेट हो जा रहा है। यस सर, यस, आई हैव सीन दैट। वो एडवांटेज इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगेन योर चॉइस, आई हैव एब्सोल्युटली नो इशू। सर वन मोर थिंग सर, Algo Prime एंड इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टर व्हाट इज द एडिशनल बेनिफिट? इन्वेस्टर इज बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वो हमने जो बनाया था, इट इज बेसिकली फॉर लॉन्ग टर्म है कि आपने जैसे से फॉर एग्जांपल आपने यूपीएल का शेयर 800 शेयर में खरीदा हुआ है, 800 रुपए में। करेक्ट। और आज वो चल रहा है 650 रुपए। करेक्ट। नाउ यू वांट टू सेल दैट शेयर ओनली एट 800 रुपीज, और 850 पे आपको बेचना है उसको। उसके पहले बेचना ही नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है ना? या आप बोलते हैं कि साहब की मेरे को तो जो है वो 500 रुपए पे यूपीएल खरीदना है, 500 के ऊपर खरीदना नहीं है। तो आप क्या करोगे कि एल्गो इन्वेस्टर के अंदर आप दोनों रेट डाल दोगे कि 500 पे बाई है और 850 पे मेरा सेल है। बस वो ऑर्डर डाल के वो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वो ऑर्डर पड़ा रहेगा। जिस दिन भी वो रेट आ जाएगा उसी दिन आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और तब तक आपको ना ट्रेडिंग कैपिटल ब्लॉक होगा और ना आपके शेयर ब्लॉक होंगे। इट्स बेसिकली एडवांस जीटीटी सिस्टम है। जीटीटी में क्या होता है? जीटीटी में आपका ऑर्डर डाल दिया, वो ऑर्डर पड़ा रहता है, ना तो आपका क्वांटिटी ब्लॉक होता है ना आपका कैपिटल ब्लॉक होता है। तो सेम चीज इसके अंदर है। ये आपका ऑर्डर जो है 2 साल, 5 साल, जब तक भी आपका वो एल्गो चल रहा है, वो आपका वो ऑर्डर वहां पे पड़ा रहेगा। दैट इज द एडवांटेज। So GTT is 1 year and this is for lifelong. हाँ, इट्स वेरी सिमिलर टू जीटीटी, बट जीटीटी में क्या है कि यू हैव लिमिटेशन ऑफ 50 और 100 ऑर्डर। हियर यू कैन पुट 500 ऑर्डर्स प्लस पिरामिडिंग। और ये पिरामिडिंग इसमें हो जाएगा। उसके अंदर आपका वो स्टैटिक ऑर्डर है। जो नॉर्मल जीटीटी ऑर्डर होता है स्टैटिक होता है, एक बार आपने रेट डाल दिया और उसी रेट पे आके बंद हो जाएगा। जबकि इसका अंदर पिरामिडिंग चालू होगा। अगर रेट गिरता गया मान लो 25-25 रुपए से, तो हर 25 रुपए पे आपके 10-10 शेयर खरीदना चालू करेगा उस पर्टिकुलर रेट से जो आपने रेट डाला है। जैसे आपने मान लो यूपीएल का आपने रेट डाला 550 रुपए और 25 रुपए का सेट ऑफ रखा, तो पहले 550 खरीदेगा, फिर 25 रुपए नीचे जाने पे फिर खरीदेगा, फिर 25 रुपए नीचे जाने पे खरीदेगा। ऐसे करके वो पिरामिडिंग हो जाएगा, जो कि जीटीटी के अंदर नहीं होता है। जीटीटी के अंदर तो एक ही वो 550 पे जो हो गया बस हो गया, खत्म। इसके अंदर आपको ये आपको फैसिलिटी मिल रहा है। और अपना जो भी पोर्टफोलियो है, आप अपना, मैंने सबको यही बताया है, अपना पूरा पोर्टफोलियो ले लो और पूरा पोर्टफोलियो के अंदर अपनी रेट निकाल दो, मेरी एवरेज बाई प्राइस ये है, उसके हिसाब से मैं टारगेट बना के डाल दो, छोड़ दो ना उसको। अभी जैसे वो लास्ट एग्जांपल हमने बताया था सुजलोन है। अब सुजलोन आपने मान लीजिए आप 15 रुपए में बेचना चाहते हो, और 15 रुपए साल में कब रेट आएगा भगवान जानता है। आज वो रेट मान लो 5 रुपए चल रहा है, तो आपने 15 रुपए का डाल दिया। अब साल या 2 साल का जिस दिन भी 15 रुपए रेट आएगा आपका माल बिक जाएगा। वो एडवांटेज है आपको एल्गो इन्वेस्टर के अंदर, और वो फ्री मिल रहा है ना आपको। ऐसा नहीं है आपको उसको कोई सेपरेट पेमेंट करना पड़ रहा है। वो लगा के चला के छोड़ दीजिए उसको। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बाई के लिए, सेल के लिए। So free for 2 months ना सर, afterwards we have to pay 1,000 rupees? नहीं, एल्गो इन्वेस्टर इज फ्री फॉर ऑल। Free for all, okay.
हाँ, एल्गो, अगर आपने एल्गो ट्रेडर या एल्गो ट्रेडर प्राइम या एल्गो ट्रेडर क्लाउड तीनों में से कोई अकाउंट लिया हुआ है तो आपके लिए एल्गो इन्वेस्टर फ्री फॉर लाइफ है, मतलब जब तक आपका वो उसका मेंबरशिप चल रहा है। ओके ओके। हाँ सर, एक डाउट था, लैपटॉप से अल्गो ट्रेडिंग का अगर जीरोधा के लिए लॉगिन करते हैं तो मोबाइल पे ऑफलाइन मतलब अल्गो ट्रेडिंग बाईपास करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ, मोबाइल से तो कर ही सकते हैं ना, मोबाइल तो चल रहा है ना आपका। हाँ, मतलब मोबाइल पे दूसरा मोबाइल में चलेगा ही चलेगा। उसमें फिनविशा में क्या हो रहा था कि फिनविशा में यू कुड प्लेस द ऑर्डर इन ऑल द 3 सर्वर। दैट मीन्स कि आपका एल्गो वाला भी एपीआई सर्वर में ऑर्डर डाल रहा है, आपका डेस्कटॉप में भी डाल रहा है, मोबाइल में भी डाल रहा है, वेब में भी डाल रहा है। 4 जगह ऑर्डर डाल सकते थे आप इन केस ऑफ फिनविशा, कंटिन्यूअसली, मतलब कंकरेंटली, साइमल्टेनियसली यू कैन से चारों में ऑर्डर डाल सकते हो। जीरोधा के अंदर यू कैन पुट ऑर्डर इन 2 प्लेसेस, वन इज एल्गो ट्रेडर एंड सेकंड थ्रू मोबाइल साइमल्टेनियसली। यानी कि लैपटॉप से आपका वो चल रहा है या क्लाउड से आपका वो चल रहा है, जीरोधा का आपका एल्गो ट्रेडर चल रहा है तो उसमें वो चलता रहेगा। और मैनुअली भी यू कैन सी योर ऑर्डर एज वेल एज पुट योर ऑर्डर इन केस ऑफ मोबाइल ओनली। और अभी उन्होंने वो टर्मिनल तो विड्रॉ किया हुआ है, तो टर्मिनल हमारे यहाँ पे है ही नहीं है जीरोधा के अंदर। दैट वाज द मेजर रीजन व्हाई आई शिफ्टेड फ्रॉम जीरोधा टू फिनविशा। I was very uncomfortable using the web application. I wanted a terminal, तो इनका टर्मिनल नहीं था, तो that was the reason I had shifted at least. Okay. तो जितना कन्वीनियंट टर्मिनल में है ना वो आपका मोबाइल में या उसमें नहीं है। और वो अनफॉर्चुनेटली जीरोधा की अपनी वो है, मतलब अगेन मैं बोलूँ दादागिरी है कि उन्होंने सिंपली विड्रॉ कर दिया। अरे 10 लाख कस्टमर है यार, 10 लाख कस्टमर को क्या आप अपना एक टर्मिनल नहीं दे सकते? मुझे बताइएगा आप। आज छोटा से छोटा ब्रोकर टर्मिनल देता है, छोटा से छोटा ब्रोकर इंडिया में है ना, वो अपने कस्टमर को एक टर्मिनल का फैसिलिटी देता है। और जीरोधा वाला बोलता है मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे भाई, जरा बताओ मुझे। आपका 100 करोड़ का सैलरी है उसका, आपका नितिन कामत का, आई शुड नॉट से ओपनली हियर, ही इज अर्निंग 100 करोड़ एज अ सैलरी। यू कांट गिव समथिंग टू द योर मतलब क्लाइंट्स, टू योर मेंबर्स। इट इज सिंपली मतलब दादागिरी नहीं तो क्या है। आई शेड आई विल नॉट कंटिन्यू विद यू, अदरवाइज आई एम रियली फैन ऑफ जीरोधा। If you recall, 2 साल पहले मैंने 2-3 प्रेजेंटेशन दिए थे कि why the Zerodha is the best, and today I am finding that Zerodha is creating so many problems. वो आपको OTM आपको ऑप्शन अलाउ नहीं करने देता। अगर आपको OTM फार OTM के अगर ऑप्शन बाई करना है तो इट विल नॉट अलाउ इट। आपका टर्मिनल विड्रॉ कर दिया है तो API का 2000 रुपए चार्ज करना। अरे रिटेल कस्टमर जस्ट बिकॉज यू हैव सच अ ह्यूज बेस तो यू विल डू एनीथिंग, दैट इज नॉट डन। और फिनविशा के अंदर सारा चीज फ्री मिल रहा है मेरे को। यूजर फ्रेंडली है उसका, वो थोड़ा सिंपल है। यूजर फ्रेंडली भी क्या है, आदत पड़ जाता है ना। क्या यूजर फ्रेंडली था मुझे बताइए। थोड़ा 4-5 दिन 10 दिन तक आपको है, बाद में देन यू कम यूज्ड टू इट। आई बिकम यूज्ड टू इट नाउ इन द मोबाइल आल्सो। लेकिन बैक ऑफिस रिपोर्ट्स सही नहीं मिलता, मतलब लॉस गेन जो रहता है ना, बैक ऑफिस उसका थोड़ा अच्छा है। नहीं यार, दैट आई एग्री विद यू। बैक ऑफिस एंड योर बाईबैक वाला, आईपीओ वाला जीरोधा के अंदर अच्छा है, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूज ना, इसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जैसे वो फैसिलिटी दे रखा है, जैसे ये फैसिलिटी आपका वेब का दे रखा है उसने, ये अपना रिपोर्टिंग का दे रखा है। नहीं सर, जैसे व्हाई इज नॉट गिविंग द टर्मिनल टू मी चेक करना हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें। हाँ, वो आई एग्री विद यू, बट पॉसिबल तो है ही ना। थोड़ा यहाँ जगलरी करना पड़ता है, बट हो तो जा ही रहा है ना। बाईबैक यहाँ भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बाईबैक नहीं हो रहा हो या रिपोर्ट नहीं। बाईबैक नहीं सर, जैसे प्रॉफिट लॉस का हमें चेक करना हो, जैसे प्रॉफिट लॉस लास्ट 1 ईयर का। एग्री विद यू यार, मैं मान रहा हूँ टोटली कि जीरोधा के वो 2-4 फीचर्स अच्छे हैं, बट मेरा जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं मीट कर रहा है ना। प्रॉब्लम ये हो रहा है, मेरा मेजर रिक्वायरमेंट है टर्मिनल का। जब उनका पाई टर्मिनल था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मुझे 20 रुपया ब्रोकरेज देने में कोई दिक्कत नहीं था। पर पाई टर्मिनल सडनली विड्रॉ कर दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू शेव 2000 रुपीज पर एनम ओनली। वो जो उनका वेंडर जो था, दैट वेंडर वाज चार्जिंग 2000 रुपीज पर एनम पर क्लाइंट फ्रॉम द जीरोधा। तो जीरोधा ने क्या देखा यार कि मेरे 10 लाख कस्टमर हैं, तो 10 लाख कस्टमर इंटू 2000 रुपए में आराम से जो है 40 करोड़ या 400 करोड़ बचा लूंगा मैं। तो ये सिंपली विड्रॉ दैट फैसिलिटी। अरे भाई यार, आप एज अ ब्रोकर अगर इतना बेसिक चीज नहीं दोगे, वर्ल्ड में मैं बताओ कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो टर्मिनल नहीं देता? यू गिव मी अ सिंगल नेम एक्सेप्ट जीरोधा। एक्सेप्ट जीरोधा, every broker in the world, India, not in India, is giving you the terminal facility. Why Zerodha is not giving? तो ठीक है भाई, so they are losing the customers. That is how this we have now 200 customers in the Finvision now. We all were with the Zerodha. We shifted to the Finvision. क्या
जोर से लग जाता है ना कि Your voice is not clear. पहले ही लग गया, जो गलती होनी थी पहले हो गई शुरू में, अब नहीं कर। किसमें, कैसे समझा नहीं मैं? तो रोकते हैं जो हवा चली The mute Sandeep Goyal. Sandeep, you want to say something? Yeah, Sandeep को mute किया मैंने. Anybody has any question on this algo trader? मल्टीपल स्टॉक्स कैसे चला सकते हैं? क्या सर मल्टीपल आपने बोला ना सर, प्राइम में अभी तक मैंने चलाया नहीं, लेकिन कैसे चला सकते हैं अगर मल्टीपल जो आप बोल रहे थे ना? Lalit will set up. Lalit will set up for you. ललित आप लिए Get in touch with Lalit. ललित सेटअप कर देगा. अच्छा, एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता था कि टुडे विल बी द लास्ट प्रेजेंटेशन ऑन द एल्गो ट्रेडर नाउ, बिकॉज लास्ट 3 महीने से एल्गो ट्रेडर के हमारे प्रेजेंटेशन चल रहे थे. नाउ एवरीबडी नोज अबाउट द एल्गो ट्रेडर, और आज जितने कॉन्सेप्ट थे वो भी मैंने बता दिए. नाउ आई एम शिफ्टिंग बैक टू द बेसिक्स नाउ. और मेजर उसका रीजन ये था कि देयर आर नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स हु हैव जॉइंड एंड दे हैव नॉट गॉन थ्रू माय बेसिक ट्रेनिंग व्हिच आई यूज्ड टू गिव 2 ईयर बैक और 1 ईयर बैक. तो मैं वो वाला नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करने वाला हूँ. बेसिक्स ऑफ द F&O ट्रेडिंग, देन योर दैट ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी, देन योर CSP एंड कवर्ड कॉल, जिसमें अच्छा पैसा आता है, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ. अभी एल्गो ट्रेडर पे मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं करने वाला हूँ. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी टाइम यू कैन ऑलवेज रेज थ्रू द ग्रुप, बट प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे अभी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन इसके ऊपर हो गए. तो वी विल शिफ्ट बैक टू द बेसिक्स नाउ, बिकॉज दैट इज मोर रिक्वायर्ड नाउ. एल्गो ट्रेडर नाउ एवरीबडी नोज कि इज द टूल. टूल से हमें स्ट्रेटेजी कैसे बनाना, दैट इज व्हाट वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू फाइंड आउट. सो दैट वी कैन डू इट ओनली इफ यू नो द बेसिक्स. अगर बेसिक्स ही पता नहीं है, कवर्ड कॉल का क्या है या CSP का क्या है या क्या उसके एडवांटेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो हम एल्गो ट्रेडर कैसे यूज करेंगे. तो पहले अपने को स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स आने चाहिए. तो वो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट संडे. लेट्स सी. अभी नो मोर प्रेजेंटेशन. सर एल्गो ट्रेडर बेसिक और प्राइम में भी क्या डिफरेंस बचा है? जैसे आपने बोला उसमें भी कंट्रोल. बेसिक और प्राइम में ये डिफरेंस है कि बेसिक वाला आपका एक ही इंस्टेंस चलेगा एट ए टाइम. अगर आपको ज्यादा इंस्टेंस चलाने हैं एक ही अकाउंट के अंदर, जैसे आपको करेंसी का अलग चलाना है, आपको कमोडिटी का अलग चलाना है, आपको डिफरेंट टाइम पे चलाना है, आपको बोलता था मुझे F&O का मेरा 10:30 बजे चले, मेरा इक्विटी का 9 बजे चले, तो ये सब पॉसिबल है प्राइम के अंदर. वो आपका बेसिक वाले में नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द जो अपने मेंबर्स हैं उनका तो काम एल्गो बेसिक से भी हो जाएगा. बट अगर आपको डिफरेंट सेटअप रखना है, एडवांस चीजें लेनी है, तो फिर आपको उसमें आ जाना पड़ेगा. सर जैसे इक्विटी में भी हमें 2 स्टेप चलाने चला सकते हैं 2. हाँ, तो 2 चलाना है तो फिर आपको प्राइम में चलाना पड़ेगा. वो क्लाउड में वो आपको बेसिक वाले में नहीं चलेगा क्योंकि उसके अंदर वो फैसिलिटी नहीं है. अच्छा, इक्विटी में 2 चलाना है तो प्राइम. इक्विटी में इक्विटी 2 चलाना है, या करेंसी के आपके चलाना है, करेंसी का अलग चलाना है, F&O का अलग चलाना है, एक आपको एक 10 बजे चलाना है, एक 12 बजे चलाना है. ये सारी चीजें पॉसिबल है आपकी प्राइम और क्लाउड के अंदर, जो कि आपका एल्गो ट्रेडर बेसिक वाले में पॉसिबल नहीं है. उसमें सिर्फ एक ही चलेगा आपका, वो एक डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स का उससे काम हो सकता है. अगर आपको एक ही चलाना है तो देन यू कैन यूज द बेसिक वर्जन आल्सो. अभी वो कंट्रोल चेन रिएक्शन तीनों के अंदर है, पहले हमने नहीं दिया था बट अभी तीनों में दे दिया. सर प्राइम और क्लाउड में 1000 रुपीस का डिफरेंस है ना? हाँ, प्राइम इज 2000 एंड क्लाउड इज 3. क्लाउड इज 3, प्राइम इज 2 एंड नॉर्मल जो है वो 1000 का. और एल्गो इन्वेस्टर है वो फ्री है तीनों के लिए. हाँ, सो क्लाउड और प्राइम का प्राइसिंग का डिफरेंस का मतलब आप थोड़ा रैशनल समझा देंगे? भाई उसका रैशनल ये है कि उसको आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो आप. मतलब कि आपका जो आपका क्लाउड का है, क्लाउड यू कैन वर्क इवन फ्रॉम योर ऑफिस आल्सो, फ्रॉम योर एनी, आप कहीं टूर पे गए हो या कहीं आप हॉलिडे पे गए हो, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मोबाइल से चला लो आप कहीं से भी. जबकि वो प्राइम वाला आपका उससे नहीं चलेगा. प्राइम के लिए आपका लैपटॉप होना जरूरी है, आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जरूरी है, आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है आपका 24 आवर्स या ट्रेडिंग आवर में जरूरी है, कभी भी आपका स्टेबल कनेक्शन चाहिए. वो सब प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आएगा क्लाउड के अंदर. वो डिफरेंस है. तो क्लाउड इज अ रियल ट्रू ऑटोमेशन, दैट इज व्हाट आई विल से. और वैसे भी आप देखो ना कि 3000 पे कितना हुआ रोज का, 100 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली हुआ. 100 रुपीज तो क्या है, अपन जो आज मैं जो पोर्टफोलियो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि एवरी डे यू शुड अर्न 10,000, 15,000, 20,000 रुपीज पर डे. तो उसके लिए अब 100 रुपीज और 75 रुपीज में क्या फर्क पड़ने वाला है. और इसमें एक्चुअली ये कॉस्टिंग भी इसलिए रखा है कि इसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगा है इनका.
It is not something like that they want to make money out of it. It's a huge efforts which have been put in there, and huge number of man hours have been really spent on this one. कोठारी जी, मेरा पोर्टफोलियो Zerodha में है. हाँ. So should I transfer it to Finvicia or should trade in Zerodha only? आप दोनों कर सकते हो ना, क्योंकि अगर हमने वो फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आपके पास किसी भी का भी मेंबरशिप है, अगर आपको फिनविशिया का आपने एल्गो ट्रेडर लिया हुआ है तो आपको Zerodha का आपको एल्गो इन्वेस्टर फ्री दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो you can continue to use your एल्गो इन्वेस्टर इन द Zerodha एंड ट्रेडिंग के लिए आप अपना फिनविशिया यूज करते रहो, आपके ऊपर है. वो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं. मतलब कि ऑप्शन ये इंटेंशन नहीं है कि मतलब एक नया फैसिलिटी दिया तो हर चीज का पैसा लिया जाए. बेयर मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो पॉसिबल है वो रखा है. मतलब वो एल्गो इन्वेस्टर को फ्री दिया हुआ है, आप कहीं भी ले लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर एल्गो इन्वेस्टर का जॉबिंग फाइल इज सेम और इट्स डिफरेंट? नहीं, थोड़ा डिफरेंट है. वो भी मैंने सैंपल फाइल में डाल रखा है. अच्छा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो सारे वो आपके वो नहीं है, एलसी यूसी यूटीआर वो नहीं है, वो सब उसमें नहीं है. और उसके अंदर सीएनसी जाता है तो उसके अंदर टाइप अपने नहीं डाल रखा है. एल्गो इन्वेस्टर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लॉन्ग टर्म की वजह से वी डोंट वांट इंटेंशनली कि यू शुड डू ट्रेडिंग थ्रू दैट वन. तो हमने उसके एमआईएस का ऑप्शन नहीं रखा, उसके अंदर एफएनडो का ऑप्शन नहीं रखा. दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इसलिए रखा कि भाई ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं भूल जाऊं उसको डाल के. एक बार मैंने टारगेट मेरा डाल दिया कि भाई मेरे को रिलायंस वाला 2000 में खरीदना है और रिलायंस का शेयर में 3000 में खरीदना है. बस एक बार डाल के छोड़ दिया, जब भी आएगा आएगा, आई एम नॉट बॉदर्ड. तो उसके लिए रखा एल्गो इन्वेस्टर, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा. ट्रेडिंग के लिए अपना एल्गो है ना. तो एल्गो इन्वेस्टर भी वी कैन हैव सेपरेटली एंड एल्गो प्राइम भी सेपरेटली वी कैन यूज. ट्रेडिंग के लिए एल्गो प्राइम एंड एल्गो इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म. राइट या. ओके, गॉट इट. सर ये फ्री ट्रायल चालू कर सकते हैं क्या? क्या बताइए? फ्री ट्रायल हाँ, ले लीजिए ना. अभी 30 जून तक मैंने 30 जून तक आपको 1 महीने तक का दिया हुआ है ना. यू कैन यूज द ट्रायल पीरियड अप टू मतलब फॉर 1 मंथ अप टू 30th जून. 30 जून के बाद में वी विल हैव कि यू हैव टू पे इन एडवांस एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू विल गेट योर रिफंड बैक. ओके सर. 30 जून तक तो अगर ललित आपको है जी, तो 1 महीने तक आपको फ्री दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ललित जी को जो उन्होंने फॉर्मेट भेजा है, उन्होंने पेमेंट डिटेल्स मांगा है, तो उसमें क्या फ्री ट्रायल करके लिख दूं? हाँ, बस उसमें लिख दीजिए ट्रायल ऑफर है, बस उसमें ब्रैकेट में ट्रायल डाल दीजिए तो समझ जाएगा. ओके. लेकिन मेरा सबको सबमिशन यही था कि कंट्रोल चेन रिएक्शन जरूर होना चाहिए. आप कभी भी अनकंट्रोल चेन रिएक्शन वाले में आप अपना ये एल्गो मत चालू करवा देना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. कंट्रोल चेन रिएक्शन बहुत जरूरी है. तो कंट्रोल रहेगा आपके ट्रेड के ऊपर. तो कंट्रोल चेन के लिए क्या वो सब्सक्रिप्शन में ही आएगा? नहीं. अभी डिफरेंस किया है कि जो कॉपी कर रहे हैं हमारा कॉन्सेप्ट, आज ये कॉन्सेप्ट हम 4 महीने पहले लेके आए थे, ठीक है ना. तो अभी जब लोगों ने देखा कि इतना जबरदस्त चलने लग गया है, इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है, तो पब्लिक कॉपी करने लगी. कॉपी करने से उनको वो जो एडवांस सेटअप है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है. तो वो क्या कर रहे हैं कि सिंपली वो आपको एल्गो ट्रेडर का वो जो ओरिजिनल वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लगा के लोगों को दे रहे हैं. तो उसके अंदर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन है. सर वो तो हम जा ही नहीं रहे उधर. हम तो अगर जाते, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कभी जावे तो ये जरूर देखना कि अपने को कंट्रोल चेन रिएक्शन चाहिए. अगर कंपटीटर, अगर जो आप कॉपी करने वाले अगर कंट्रोल चेन रिएक्शन देते तो ठीक है, देन इट्स द सेम थिंग. बट अगर कंट्रोल चेन रिएक्शन नहीं है तो नहीं यूज करना, बड़ा लॉस हो जाएगा उसके अंदर. क्योंकि जो अपने में हुआ है इनिशियली, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको. भाई अपन जो एक्सपीरियंस हो चुका है उस एक्सपीरियंस को मतलब क्यों रिपीट करें वापस. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है. ओके सर. सर और अल्गो क्लाउड का जो सब्सक्रिप्शन है वो मोबाइल से भी कर सकते हैं हम लोग. और समझो अल्गो क्लाउड यूज नहीं करना है तो मोबाइल से वापस वो लॉग आउट करके बाद में काइट में जाना पड़ेगा. नहीं, उस वाले केस में तो वो नहीं, मोबाइल से वो तो फिर बहुत मुश्किल होएगा आपको. कि उस वाले केस में फिर आपको एनी डेस्क के थ्रू करना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट है. अगर आपको जैसे प्राइम के अंदर भी अगर आपको मोबाइल से करना है, कंट्रोल करना है, तो मोबाइल में एनी डेस्क लगाना पड़ेगा, आपके लैपटॉप में एनी डेस्क लगाना पड़ेगा और एनी डेस्क से कंट्रोल करना पड़ेगा. तो वो बहुत टीडियस है. आई विल नॉट सजेस्ट. यूज करना अच्छा है, हम लोग को भी ज्यादा इतना ये नहीं होता है. तो उसे क्लाउड यूज करो ना. क्लाउड में प्रॉब्लम ही नहीं है. क्लाउड में क्या फर्क पड़ता है, क्लाउड से करो ना. क्लाउड मोबाइल से भी होता है ना. हाँ, क्लाउड मोबाइल से हो जाए, क्लाउड वाला मोबाइल से होगा.
लेकिन समझो मैं अभी क्लाउड से यूज नहीं करना चाहता, अल्गो ये काइट से डायरेक्टली सेपरेटली करना, ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। हाँ वो भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो, और क्लाउड से अपना मोबाइल से कहीं से भी इसको चेंज कर सकते हो। दैट यू कैन डू इट, दैट यू कैन डू इट। ओके, मतलब कि एडवांस जब जा रहे हो तो जो पुराने वाले हैं वो सब फीचर तो आपको मिलेंगे ना। एडवांस वाले को जो बेसिक वाले फीचर है, वो बेसिक प्राइम वाला और जो एल्गो ट्रेडर वाला, वो तो आपको मिलने वाला है। और जीरोधा के ऊपर किसी को क्वेश्चन है? एनीबॉडी हैज अ डाउट ऑन द जीरोधा? तो ये जो मैं जो नेक्स्ट वाला जो स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, उसमें क्या व्यू है आपका? डू यू वांट दिस ऑन द बेसिक ऑफ F&O और नॉट? सर जीरोधा में ओनली द टाइप इज चेंज्ड एंड द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट में ये है ना, दैट्स इट। हाँ, EQ नहीं लगाना है, बस वही दो ही चेंज है, बस दो, और कोई चेंज नहीं है। सेम फॉर्मेट है। नेम ऑफ द स्टॉक में क्या नहीं लगाने का सर? डैश EQ जो लगाते हैं ना लास्ट में अपन। अच्छा, डैश EQ, ओके, हाँ वो नहीं लगाना है, वो सीधा नाम लिखना है, और फ्यूचर के अंदर F नहीं लगाना है, सीधा वो पूरा उसका सिंबल ही डाल देंगे, और वो टाइप के अंदर जो है CNC, MIS या NRML ये लिखेंगे। और कोई फर्क नहीं है, और कोई फर्क नहीं। सर ये इसमें एक सब्सक्रिप्शन में हम लोग जीरोधा एंड फिनेशिया दोनों ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं, वो दोनों अलग अलग चलेगा, क्योंकि हमारा जो गूगल शीट है उसके अंदर दोनों अलग अलग लाइन डालना पड़ रहा है मेरे को, वो नहीं होगा। हाँ, एल्गो इन्वेस्टर आप दोनों में चला सकते हैं, एल्गो इन्वेस्टर में प्रॉब्लम नहीं है, एल्गो इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, बट अगर एल्गो ट्रेडर आपको दोनों में चलाना है तो अलग अलग अकाउंट रहेगा। क्लाउड सब्सक्रिप्शन में नहीं, क्लाउड में किसी में भी अगर आपको होगा, तो अगर आपको एल्गो ट्रेडर चलाना है दोनों में, तो दोनों अलग अलग अकाउंट रहेगा। ओनली एल्गो इन्वेस्टर फ्री है दोनों के लिए। इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म वाला है ना, लॉन्ग टर्म वाला तो वो जरूरी है ना सभी के लिए, वो तो देना चाहिए था, इसलिए हमने वो सबको फ्री दे दिया। बट अगर एल्गो ट्रेडर अगर है तो फिर आपको अलग अलग अकाउंट लेना पड़ेगा। ओके। तो सर फैमिली मेंबर के लिए और एक अकाउंट लेना पड़ेगा? एक में कितना फैमिली, 1-2 फैमिली मेंबर्स कैन बी यूज्ड? नहीं, वो फैमिली मेंबर के लिए आपको अलग अलग अकाउंट लेना पड़ेगा, अलग अलग अकाउंट है। If I have Algo Prime, I can use in laptop or mobile, that is okay. But Algo Prime, I cannot use my family member with the same account. I have to have a different payment I have to make. हाँ, different payment करना पड़ेगा। Okay. But you can use in the Algo Trader Prime में you can use it, even Algo Basic में भी you can use it. But उसमें ये है कि सिंगल इंस्टेंस और मल्टीपल इंस्टेंस का फर्क है। जैसे आपके पास Algo Trader Basic वाला है, and you want to have 2 family account, तो you can run 2 family account in 1 laptop. Okay. एक लैपटॉप में दोनों चला सकते हो, बट आपको दोनों का सेपरेट अकाउंट लेना पड़ेगा। सिमिलरली एल्गो ट्रेडर प्राइम के अंदर भी यू कैन रन बोथ इन थ्रू योर मल्टीपल इंस्टेंसेस इन 1 अकाउंट फॉर द मतलब फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। जैसे फैमिली अकाउंट है, दोनों अकाउंट में आपको इक्विटी भी चलाना है, करेंसी भी चलाना है, दोनों के लिए अलग अलग चलाना है, तो वो प्राइम में लेना पड़ेगा ऐसा। So I have Algo Prime now. Already there. I'm using only laptop. So if I want to use for my wife's account, so I have you have to take one more account. You have to take one more account. One more account. That's what you have to take one more. तो मेरा सजेशन ये था कि आप बेसिक वाला ले लो, फिर एक आप डोंट गो फॉर अनदर वन मोर प्राइम। एक बेसिक वाला ले लीजिए जिसमें आपको एक ही चलाना है, तो वो आप एल्गो ट्रेडर करके चल जाएगा, और आप प्राइम में आप अपना 2-3 चीज यूज कर सकते हो, ऐसा कर लेना आप। ठीक, ओके, गॉट इट, थैंक यू। Any other question? मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। हाउ इज सेफ टू शिफ्ट माय पोर्टफोलियो फ्रॉम जीरोधा टू फिनविशिया? वो तो आप CDSL से शिफ्ट कर सकते हो ना। As per the broker, is it safe in Finvicia? You can shift through CDSL. CDSL में आपको उनका प्रोसेस है पूरा, और काफी सारे वीडियोस भी अवेलेबल है आपका YouTube के ऊपर, कोई भी YouTube देख लो, दे हैव एक्सप्लेन इन डिटेल कि how to shift account from one account from Zerodha to Finvicia, or from one CDSL to another CDSL, or from NSDL to CDSL. There are so many videos are available. You can see any of those videos and then you can do it. But इसमें मेरा एक ही चीज था, if you are transferring one script, then you have to pay the transfer charges. But if you are transferring the whole your portfolio, पूरा पोर्टफोलियो को ट्रांसफर कर रहे हो, then it is free as per the SEBI guideline. जैसे आपका जीरोधा में अगर आपके पास मान लो 5 स्क्रिप्ट का पोर्टफोलियो है 20 लाख रुपए का, तो पूरा पोर्टफोलियो अगर आप वहां से अगर आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हो फिनविशिया में, देन द चार्जेस विल बी नील। बट अगर आप एक शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपको वो जीरोधा वाला चार्ज लेगा हर एक स्क्रिप्ट का अलग से।
that you have to be careful. But then in that case, I have to close Zerodha account, or I can sit the entire portfolio. Basically, it is a closure of it is considered as a closure of the account. It is considered as closure of the account. But it is considered as closure of the account. That means you are closing your account and shifting your portfolio to another account. तो सेबी ने वो आपको फ्री किया हुआ है. Sir, if I shift the portfolio from Zerodha to Finvicia, so capital gain statement में the buy values we have to feed in, or how is it? हाँ, वो आएगा ना आपको buy. लेकिन अगर आपका सेम अकाउंट, सेम पेन नंबर है, if your PAN number is same, then there is no your capital gain or no your LTCG. But if there is a change in the name of the account, एक अकाउंट जॉइंट अकाउंट है और एक अगर आपका सिंगल अकाउंट है या वाइफ से हस्बैंड को लेके जा रहे हो, तो आपको ये आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा. जो भी आपका LTCG या शॉर्ट टर्म गेन है, जो भी है वो लगेगा. नहीं, वो नहीं सर. सपोज मैं Zerodha में खरीदा, I transferred it to Finvicia, then Finvicia में भेज दिया मैंने. So Finvicia has to give a capital gain statement at the end of the year. So in that they don't have the buy values of the stock. हाँ, वो जीरो लेके चलेंगे. वो आपको फिर मैनुअली आपको जो है अपने ITR में फाइल करना पड़ेगा आपको. हाँ, मैनुअली वो इधर का प्रूफ लेके मैनुअली करना पड़ेगा. मैनुअली, क्योंकि वो तो जीरो करके दिखाएगा. आपने जो शेयर ट्रांसफर किए हैं उसको जीरो वैल्यू करके दिखाता है. हाँ, so then it will be shown as a full value as a profit. Capital gain. वो आपको सेपरेट फाइल करना पड़ेगा. Okay, thank you. और कुछ एल्गो ट्रेडर पे एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? किए थे सर, जो चेन रिएक्शन वाला एक्सप्लेन किए थे, वो सेम चीज एफएनओ पे भी वर्क करता है क्या? सभी में वो तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है. द प्रोसेस रिमेन द सेम. एफएनओ में क्या? एफएनओ में मतलब उसका एफएनओ में इम्पैक्ट क्या रहता है? बिकॉज इतने लॉट्स होते हैं, फिर क्वांटिटी इतना बढ़ जाता है, कैसे उसको हैंडल करते हैं? ये तो कंट्रोल रहेगा ना. आप मैक्स क्वांटिटी से कंट्रोल कर सकते हो ना. जैसे आप मान लीजिए मेरी 4-5 स्लाइड की है, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड डाली हुई है जो मैं लोगों को भेज देता हूं मैं. तो उसके अंदर यू कैन कंट्रोल थ्रू योर मैक्स क्वांटिटी. जैसे आपको मान लो बैंक निफ्टी में करना है और बैंक निफ्टी 25 का है, तो आप मैक्स क्वांटिटी 100 रख लो, तो वो 4 से ज्यादा करने ही नहीं देगा, 4 लॉट से ज्यादा करने ही नहीं देगा ना, लॉन्ग या शॉर्ट. तो उस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो. एक्चुअली उससे अच्छा पैसा बन सकता है, लेकिन देन समबडी हैव टू रियली सीरियसली डू इट. इसके ऊपर आपका अलग कोई प्रेजेंटेशन या कोई मतलब वॉक थ्रू या ऐसा कुछ है? मेरा प्रेजेंटेशन है. मेरा प्रेजेंटेशन जो मैं शेयर करता हूं उसके अंदर मैंने F&O की भी स्लाइड डाली हुई है, सो दैट यू कैन गो थ्रू इट. जस्ट सेंड मी अ रिक्वेस्ट, आई विल सेंड इट टू यू. या दिस इज माय फर्स्ट टाइम. आज मैं पहली बार ही मतलब एक्सपोज्ड टू एल्गो ट्रेडर. सो आप मेरे को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दो. आई विल ऐड यू इन द व्हाट्सएप दिस आवर एल्गो ट्रेडर ग्रुप आल्सो, एंड आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन आल्सो. अच्छा, ठीक है सर. हाँ, you have my mobile number? नहीं, I'll note it. This is 99201 99201 601 50. ठीक है. Yeah. Thank you. But you have an account with Zerodha or the Finvicia? I have account with Zerodha already. Okay then, there is no issue. ठीक है. And just send me a request. I will add in the member and I will send you the copy of the presentation also. Don't worry. And I'm okay with the workaround also because I can manage with the mobile and the Kite जो web application है वो अगर Algo पे चले तो that's fine. नहीं, Kite चलेगा मोबाइल वाला Kite चलेगा. Kite web application Algo के लिए ब्लॉक हो जाएगा. हाँ, वो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि they are using that server. जो वर्कआउट के अंदर वो सर्वर यूज कर रहा है आपका जो वेब वाला सर्वर है. ठीक है, मैं आपको मैसेज भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, और कुछ अलग स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं एक बार वहां पे भी क्लैरिफाई करूंगा. या नो प्रॉब्लम, नो इशू, एनी टाइम. एनी अदर डाउट? Any question you can ask on Algo Trader, because now next presentation we will not be taking on Algo Trader now. और मे बी आफ्टर 2-3 मंथ देखेंगे, अगर जरूरत हुआ तो उसमें देखेंगे, नहीं तो अभी तो कोई प्लान नहीं है. But there is no more question. We'll end then. एक क्वेश्चन है कुलदीप. For trading my portfolio, for Algo Trader, it is better to start with sell. हाँ, अगर आपके पास में मेरा अभी पर्टिकुलरली जो बियर मार्केट चल रहा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 2-3 महीने ये बियर मार्केट और चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका एफडी के रेट, ये जो बॉन्ड के रेट बढ़ा रहे हैं ये लोग, और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
लॉन्ग टर्म के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड कि मार्केट विल फॉल एटलीस्ट बाय 20%. योर क्रिप्टो विल बी अवेलेबल इन 10,000 रुपीज, $10,000 में क्रिप्टो मिलने वाला है आपको. तो मार्केट आपका गिरने वाला है. तो अभी मेरा सजेशन है कि यू ऑलवेज स्टार्ट विद द सेल, नेवर स्टार्ट विद द बाई और स्टार्ट विद द बोथ इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो. अगर ट्रेडिंग करना है तो बोथ से चालू कर लो, बट वो भी रिस्की है अभी, क्योंकि मार्केट नीचे ही जाना है. 2-4 दिन आपका ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ऊपर नीचे नहीं होंगे, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो भी नजर आ रहा है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ ये डाउनवर्ड ट्रेंड है. तो ऑलवेज स्टार्ट विद द सेल. पहले सेल करो और सेल करने के बाद में गिरेगा तो बाई करो, नहीं है तो आपका सेल हो गया, यू शुड बी वेरी हैप्पी. ठीक है ना? Considering that my present value is my investment. No, your question is not clear. No, say I have purchased BPCL at higher price. Okay, now I have to consider my present value only. हाँ, मतलब वो उसमें मेरा सजेशन ये था कि 10% उस क्वांटिटी से आप ट्रेड करो. आप डोंट ट्रेड मोर देन 10% क्वांटिटी. नहीं तो अगर आपका माल बिक गया तो यू विल हैव रिग्रेट कि यार मैंने 500 रुपए में लिया था और 300 में बिक गया. तो ट्रेड विद 10% ऑफ द क्वांटिटी से ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा मत करना उसको. तो अभी बीपीसीएल वापस 500 आना तो अभी मतलब डाउट ही लग रहा है. अभी डाउट लग रहा है क्योंकि जब तक वो डिसइन्वेस्टमेंट का नहीं होगा, अभी डिसइन्वेस्टमेंट तो अभी कोई नजर आ नहीं रहा है. कब गवर्नमेंट का नया पॉलिसी आएगा, कब वो बीपीसीएल के अंदर ऐसे पार्ट करके बेचेंगे या क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है. तो 500 तो अभी डाउटफुल है. मे बी 350-400 आ जाए, बट 500 तो मुश्किल है. तो वैसे भी मैंने बताया ना कि वी हैव टू टेक द करंट वैल्यू, कि वो वैल्यू पे मुझे बाय बनता है या सेल बनता है. दैट डिसीजन यू हैव टू टेक. वी हैव टू कम आउट विद दैट कॉन्सेप्ट कि मैंने 500 पे लिया था. अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पे लगाना है, एल्गो ट्रेडर में 500 का रेट डाल के छोड़ दो. जिस दिन में 500 का रेट आएगा आपका माल बिकेगा और भूल जाओ उसको, बीपीसीएल को. दैट इज द वन स्ट्रेटेजी यू कैन हैव. आपने 500 पे बाई किया, 525 का सेल डाल के एल्गो इन्वेस्टर में डाल के छोड़ दीजिए. कभी ना कभी तो रेट आना ही आना है. ऐसा तो होगा नहीं कि रेट आएगा नहीं. जैसे लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स 1 लाख तो आएगा ही आएगा. अब वो कब आएगा, 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, कब आएगा पता नहीं है, लेकिन 1 लाख सेंसेक्स पक्का आएगा अपनी लाइफ टाइम के अंदर, ये गारंटेड है. तो डाल के छोड़ दीजिए, जिस दिन आएगा उस दिन बिक जाएंगे. उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है. अपन जो जमीन खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं तो हम रोज रोज प्राइस थोड़ी देखते हैं. एक बार हमने फ्लैट ले लिया तो वैसे ही अपन उसको बीपीसीएल को आप ट्रीट करो. आप भाई ले लिया, जिस दिन आएगा उस दिन बिकेगा, नहीं आएगा तो आराम से बैठे. सो यू कैन हैव दैट स्ट्रेटेजी आल्सो. और आ जाता है कितनी बार. ऐसा नहीं है कि जैसे बीच में अगर एकदम से कोई न्यूज आ गया, हो सकता है कि उस दिन से एकदम से फ्लक्चुएशन होके और बीपीसीएल 500 आ जाए. कुछ पता नहीं है. जिस दिन आ जाएगा उस दिन माल बिक जाएगा आपका. जैसे सुजलोन है, सुजलोन 15 रुपए साल में 1 या 2 बार पक्का आएगा. जिस दिन आएगा सुजलोन बिक जाएगा, नहीं आएगा तो बैठे हैं आराम से. लाइक दैट यू कैन डू इट. Sir, algo में this if I put a sell symbol, so it will first sell it, next set off onwards it is aligned by orders, it goes on placing. Yeah. So if I put buy, first it will buy, then next it will go on buy and sell. नहीं, उसमें 2 सिस्टम कर सकते हो आप. एक सिस्टम तो ये कर सकते हो कि आपने एक ही रो के अंदर सिर्फ सेल डाला हुआ है और बाई एंड सेल का दोनों का ऑफसेट डाला हुआ है. तो पहला सेल करेगा और उसके बाद में वो बाई सेल दोनों चालू करेगा. एक तो ये सिस्टम है. करेक्ट. दूसरा सिस्टम क्या करोगे, आप 2 रो यूज करो. एक रो में आप सेल का डालो, एक रो में आप बाई का डालो और दूसरी क्वांटिटी 0 कर दो आप. तो सिर्फ वो सेल ही सेल करेगा और नीचे में बाई करेगा. तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा. जो आप बता रहे हैं कि यार वो मेरा हो सकता है कि पहला सेल हुआ और उसके बाद बाई चालू कर दे रहा है. आप बोलो कि मुझे बाई तो मुझे इस रेट पे ही करना है, उसके ऊपर बाई करना ही नहीं है, तो 2 डिफरेंट रेट डाल के चलो. यानी कि जो यूपीएल का एग्जांपल लेंगे तो यूपीएल मैंने 700 का डाला और 710 पे मैं सेल करना चाहता हूँ और 720 पे सेल करना चाहता हूँ. ठीक है. तो पहला रो डालूंगा मैं सेल का और बाई क्वांटिटी में 0 कर दूंगा मैं. तो यानी कि वो 710 पे सेल करेगा, 720 पे सेल करेगा. और जो सेकंड रो होगा उस सेकंड रो में मैं से बाई रखूंगा, सेल क्वांटिटी 0 कर दूंगा वहां पे. तो वहां मैं क्या करूंगा, 700 - 10 690 680 पे वो बाई करेगा और नहीं तो बाई नहीं करेगा. तो यू कैन हैव दैट सेटअप आल्सो. तो जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट है वो लगा सकते हो आप. 2 डिफरेंट रो विद बाई डिफरेंट लाइन, सेल डिफरेंट लाइन, और 1 रो के अंदर स्टार्ट विद ओनली सेल ओनली. सो वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा सेटअप यूज करना है आपको. So when I put a buy, then sell quantity I should make 0.
0 या अगर आप सेपरेट रो यूज कर रहे हो आप तो हाँ सेपरेट यूज करेंगे तो व्हेन आई पुट सेल क्वांटिटी सेल देन बाय क्वांटिटी 0 so then it will go on doing that. Okay. Yeah, it will go on selling only और नीचे में it will go on buying only. वो सेल नहीं करेगा क्योंकि आपने वो दूसरा क्वांटिटी 0 रखा हुआ है. So you can use that setup also. Okay. ये मैंने सब प्रेजेंटेशन में डाले हुए हैं. If you go through my presentation, got it. ये सारे different combinations मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं. सारे strategies वहाँ पे लिखी हुई है. Okay. So you can use any of those strategies. तो अलग इन्वेस्टर का एक स्लाइड बना दिया है, बना के किधर भी डाल देना. वो उसके अंदर है, प्रेजेंटेशन के अंदर है मेरा उसके अंदर. अच्छा ओल्ड लास्ट प्रेजेंटेशन में ठीक है. हाँ जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसके अंदर है, वो उसके अंदर मैं ऐड करता रहता हूँ के अंदर. जो भी मैं स्लाइड दिखाता हूँ वो मेरा प्रेजेंटेशन में ऐड कर देता हूँ मैं, तो फिर शेयर कर दूंगा मैं इसको मैं. Okay. और यू कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट, आई विल सेंड यू टू यू डायरेक्टली आल्सो, नो प्रॉब्लम. ओके थैंक यू.